Let's start, sir. Unmute कर लो, sir. President, sir. शुरू कर लीजिए सर, शुरू कर Okay, sir. Very good evening. I welcome our honorable and worthy President C.A. Atul Kumar Gupta ji. Welcome, sir. And our worthy Central Council member C.A. CJS Nanda ji. Most welcome, sir. And on today's webinar on new age profession and professional opportunity to the profession, chartered accountant. As you know that there is no need to introduce our Atul Gupta ji, worthy president, and Nanda ji, but I would like to say something about them. Atul Gupta ji, honorable president of ICI, having a quick understanding, sharp vision, serving the profession since last 2 decades, widely respected. He came into limelight when goods and service tax regime came into the force. He worked hard, authored books, and by way of seminar, in make the members teach. He took so many steps for the welfare of members and students. One of them is very remarkable, this SSP portal. At the time when he was the vice president last year, the SSP portal came into force, and all the video, pre-recorded video on all subject for the member and students are there. All publication of the ICI Chartered Accountant journals are also on there. The member and student and any time can access from anywhere, download them, view them, read them, and even if they want to purchase, they can order. And I think by this way, the members and students are saving their time by visiting the ICI and saving the lot of money to buy the publications and other materials. Still, I feel that there are some problem in SSP portal, but I would like to say something that GST portal came into force on 1st July of 2017, and being a large infrastructure and government and all sansadhan, that there are lot of problem in GST portal after 3 years. But on the other hand, on SSP portal, there are few problems and all are settling down. Only the 1 year has gone, or most of the period due to COVID. And one more thing, in last 20 years, Atul Gupta ji, our honorable president, serving the profession, there are no blame on him. Vedag Shabi sir. This is the record of our Atul Gupta ji. He remained as a chairman of regional council and chairman of NIRC of ICWI also. And when this program was conceived, he suggests the name of our honorable central council member Nandaji as a other speaker. Nandaji is also a most experienced and having the commendable job, and headed the all committee of ICI as a chairman and vice chairman, always ready to help, and got the 35th merit holder position in intermediate exam. And also there are a lot of things that Atulji has taken so many initiatives for member and students and firms, like there's structured CP hour without any charge, webinar on contemporary and emerging topics, ensured online learning for members without any cost, concession for late fee in submission of forms, and on the side of the firms, from the member whose membership and COP got deactivated, being unable to submit restoration application due to lockdown, process reopened till even 31st May 2020 for retrospective restoration. There are a lot of things to tell, but I would like to stop here and once again welcome our worthy president and honorable Central Council member Nandaji, and welcome sir, and over to our president Atul Gupta ji for your guidance to our members, sir. Thank you, Rajesh ji, and a very honorable, respected, and my elder brother in the council, CA Charanjot Singh Nanda ji,
the honorable colleagues from the Pusa Road CP Study Circle, former regional council member Rajesh Agarwal ji, and all the respected members, friends, ladies and gentlemen. At the outset, I'm thankful to Rajesh bhai and for inviting me to share some of my thoughts, and Nanda ji also for joining me on this Saturday evening for this webinar being organized by the Pusa Road CP Study Circle, the virtual meetings, virtual CP meeting. राजेश जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो एसएसपी पोर्टल है जिसका श्रेय आपने मुझे दिया, ये एक लंबी प्रोसेस थी जो नीलेश विक्रमसे जी के टाइम पे हम लोगों ने इन प्रिंसिपली अप्रूव किया था, और उसके बाद उस प्रोसेस को, क्योंकि नेचुरली किसी भी सिस्टम को बनाने में टाइम लगता है, तो फाइनली ये श्रेय जरूर ऐसा रहा कि 2019 में मई में हमने इस पोर्टल को विधिवत लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद एक समय ऐसा भी था कि करीबन हमारे पास 70,000 क्वेरीज जो हैं वो मेंबर्स की और स्टूडेंट्स की थी, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था. तो वी प्रैक्टिकली वर्कड अप टू इवन 2 AM in the morning in the ICI and to see that how we can immediately resolve the queries. और ये भी बात सही है कि बाद में वो धीरे धीरे आज स्टेबलाइज हुआ. और मैं एक बात कहूँगा आप लोगों को कि आज अगर कोविड के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे, अगर इस प्रोफेशन को, इस पूरे प्रोफेशन की एक्टिविटीज के अगर दो बड़े सेवियर हैं, तो वो एक एसएसपी पोर्टल है और जो एक दूसरा डिजिटल लर्निंग हब है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग इस बात को समझ सकते होंगे कि पिछले 5 महीनों में करीबन 3 लाख एप्लीकेशन जो है वो आईसीआई को रिसीव हुई है अलग अलग पर्पज से, मेंबर्स और स्टूडेंट्स की, और उनमें से 90% प्रॉब्लम जो है वो एसएसपी पोर्टल के अंदर विद इन द सेम डे रिजॉल्व हुई है. 10% हिकअप्स हैं, आई एग्री. कुछ ऐसे हैं जो डेटा इश्यूज हैं, कोई ओल्ड लीगेसी डेटा है, या कोई ऐसा है कि जो पहले मैनुअली प्रोसेस हो गया और वो सिट्रिक्स में नहीं चढ़ा. तो उस सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करके हैंडल कर रहे हैं. लेकिन नेवरदलेस थैंक्सफुल टू द लीडरशिप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिन्होंने इसको विजुलाइज किया, और फिर हम लोगों का काम जो था वो उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने का काम था, और हम लोगों ने वो कोशिश करी. At the outset, once again, I start conveying my thanks to the Pusa Road CP Study Circle and pray the Almighty कि इस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में let us you remain healthy, safe, and everybody please take care of yourself. अगर हम लोग जो है वो आज के प्रोग्राम की बात करें, तो मैं आज के प्रोग्राम के अंदर 2 भागों में बांट के अपने एड्रेस को करना चाहूँगा. आई बिलीव कि हमारे पास करीबन 5 बजे तक का समय है जब मैं बोल सकता हूँ, और फिर नंदा जी हमें एड्रेस करेंगे सबको. तो हमारे पास करीबन 45 मिनट का समय है, और मैं इस नहीं सर, आप प्रेसिडेंट साहब 1 घंटा लो, मैं सर आधा घंटा बोलूँ, आप प्लीज सुनना चाहते हो प्लीज. तो उसमें क्या है कि मैं 2 पार्ट्स में बात करूँगा आप लोगों से. एक पार्ट में हम बात करेंगे कि कुछ नए इनिशिएटिव जो आईसीआई ने आप सभी के लिए, मेंबर्स के लिए और बच्चों के लिए पिछले कुछ समय में लिए हैं, और कुछ ऐसी बातें जो हमारे प्रोफेशन को, तो मेरे जैसे टॉपिक की बात हुई तो हम लोगों ने बात करी प्रोफेशन ऑफ द फ्यूचर, और या फिर हम बोले तो अपना जो है वो प्रोफेशनल ऑफ द फ्यूचर, कि हमें कैसा फ्यूचर का हमें अपने आप को तैयार करना है, किस तरह के चैलेंजेस हमारे प्रोफेशन या प्रोफेशनल्स के सामने आएंगे और आ रहे हैं, और हमें उसके लिए कैसे अपने आप को रीस्किल करना है, इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे. पहले मैं जो है वो आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीन शेयर करते वक्त मैं राजेश जी बीच में आपसे पूछता रहूंगा, क्योंकि कई बार टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा होता है कि स्पीकर बोलता रह जाता है और पता चला कि उधर जो है वो सब कुछ म्यूट हो चुका. तो इसलिए आप समय समय में मैं आपसे पूछूंगा, और आपको छोटा सा एक प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सर. जी सर, जी सर. प्रेजेंटेशन विजिबल है ना राजेश जी? यस सर, यस सर. हाँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बात करना चाहूँगा सर. यहाँ से थोड़ा सा बात करेंगे, और आप सभी लोगों को पता है कि 12 फरवरी 2020 को जैसे ही आपके इस भाई ने विद द प्रेयर, ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी, माय पेरेंट्स एंड ईच वन ऑफ यू, जिन्होंने मुझे गुड विशेस दी, ब्लेसिंग दी, जिसकी वजह से आज आपका भाई आपके बीच में प्रेसिडेंट के रूप में है. हम लोगों ने 12 फरवरी 2020 को
डे 1 को 12:10 पे जब हम लोगों का ऐसे मतलब एज प्रेसिडेंट के रूप में हमारे को वो सम्मान मिला, इमीडिएटली हम लोगों ने एक विजन पेपर लॉन्च किया और जिसके अंदर बात की गई कि हमारे 75th जो हमारी एनिवर्सरी है, जो हम लोग जो है प्लेटिनम जुबली की अगर हम बात करें, उसकी बात करें, तो जो 75th ईयर ऑफ द आईसीआई होगा तो हम लोग कैसा आईसीआई देखना चाहेंगे। तो हम लोगों ने 6 बजवर्ड्स तय किए कि हम लोग जो है वो 6 बड़े अचीवमेंट्स की बात करें, जिसके अंदर जो पहला अचीवमेंट है कि हम लोग जो है वो इंडिया के अलावा 100 अलग अलग सिटीज के अंदर जो है, उनमें से करीबन 80-85 कंट्रीज में जो है वो हम लोग जो है वो दुनिया की अवेलेबल हो, वहां पर हमारे चैप्टर्स हो, वहां पर हमारे मेंबर्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो। वहां पर अगर हम कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो एक साथ 101 कंट्रीज में या 101 सिटीज के अंदर एक साथ जो है वो कैंपस प्लेसमेंट हो, हमारे 50 से ज्यादा म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स हो, हमारा एक बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी का जो है वो ताना बाना जो है वो बना हुआ हो, जहां पर हम ट्रस्ट की बात करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में जब ट्रस्ट कम आता है, जब हम एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं, तो हम कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर के रूप में खड़ा कर सकते हैं। पीयर रिव्यू स्ट्रॉन्ग हो, एफआरआर भी स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी केस डीसी के पास आए तो वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो उसका डिस्पोजल अपने आप में हो पाए। हम लोग लार्जर फर्म्स कैसे बना पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर देखें तो 95% फर्म जो है वो आज भी प्रोप्राइटरशिप में है, और जबकि हमें ग्लोबल कंपटीशन आ रहा है और आप लोगों ने नई एजुकेशन पॉलिसी देखी होगी जिसके अंदर उन चीजों को अलाउ भी किया गया है, तो हम लोग उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को कैसे खड़ा कर पाएंगे। हम लोग अपने मेंबर्स को वाओ एक्सपीरियंस देने के लिए डोर स्टेप सर्विसेज कैसे दें, हम अपने मेंबर को न्यू एज के लिए, तो आप लोगों को मैं अभी बात करूंगा कि अपने पास जो चैलेंजेस आने वाले हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से चैलेंज आने वाले हैं, उसके हिसाब से हम अपने मेंबर्स को कैसे तैयार करके करें। और फाइनली जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स का जो है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ तो रोटा लर्निंग नहीं हो, केस स्टडी बेस्ड इवैल्यूएशन हो, 100% मशीन बेस्ड इवैल्यूएशन हो, ये सब चीजें जो है वो हम लोगों ने विजुलाइज करी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा डिटेल्ड विजन पेपर बनाया गया, जिसमें करीबन 100 ऐसे एक्टिविटी लिखी गई, जिनके अंदर ये बात तय हुई कि अगले 3 सालों में अगर हम इन 100 एक्टिविटीज को करेंगे या उससे भी कुछ ज्यादा एक्टिविटीज को करेंगे तो धीरे धीरे करके हम लोग जो है ये इस विजन की बात करें, तो इस बजवर्ड की बात करें, इन सब बातों की बात करें तो हम पहुंच सकते हैं। तो राजेश जी, और आपको राजेश जी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो मैं अगर शुरुआत करूं तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो 1 मिनट के लिए शुरुआत करी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे रिफॉर्म जिसके अंदर जो है वो, और मैं आपको एक यहाँ पर बात कहना चाहूंगा, नंदा जी इस बात के गवाह हैं कि हम लोगों ने पूरी काउंसिल को एक टीम की तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। एक छोटी से छोटी चीज के अंदर हम काउंसिल मेंबर्स के साथ पूरी मीटिंग करते हैं और उसके बाद उनके एफर्ट्स को, उनके जो पूरे के पूरे पूरी काउंसिल जो है वो एक टीम की तरह काम कर रही है। कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी अगर मैं बात करूं तो अभी हमारी रिसेंटली काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर नंदा जी इन स्पाइट ऑफ ऑल, मैं तो अवेलेबल था ही था, लेकिन नंदा जी खुद पर्सनली अवेलेबल थे उस काउंसिल मीटिंग के अंदर, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी फियर कि भाई आपने को जो है वो कोरोना का कितना जो है वो अपने आप में फियर रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो हमारे सामने, जैसे मैंने बोला कि रेगुलेटरी जो हमारा जो है वो एक इम्पोर्टेंट रहता है, तो ई हियरिंग, तो हम लोगों का एक विजन था कि हम लोग जो है वो, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपनी हियरिंग हो रही है, वो तो कोरोना की वजह से है, लेकिन हम लोग नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी ई हियरिंग शुरू करें, जिससे कि हम लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा केसेस का डिस्पोजल जो है वो अपने टाइम बाउंड मैनर में कर सकें। और मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है सर आप लोगों को कि हम लोगों ने जो है वो ई हियरिंग का जो कंसेप्ट है वो फेब 2020 से इम्प्लीमेंट कर दिया है आईसीआई में। आज की तारीख में हमारी जितनी भी हियरिंग्स हो रही है डिसिप्लिनरी कमेटीज की, वो सारी की सारी ई हियरिंग मोड में हो रही है। लास्ट ईयर आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एवर हाईएस्ट, लास्ट ईयर हमने करीबन 413 केसेस का डिस्पोजल किया, जो नॉर्मली डिस्पोजल से 5 टाइम्स ज्यादा था, जिसके अंदर हम लोग नॉर्मली जो करते हैं, और सिर्फ इस पर्पज से कि हम अगले 2 सालों के अंदर इस सिचुएशन पे ले आए कि कोई भी केस अगर फाइल होता है तो वो हमारा जो है वो 6 से 9 महीने के अंदर अंदर जो है वो केस का डिस्पोजल हो सके। इसी के साथ हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे कि मान लीजिए आईसीआई के अंदर जो है फर्म्स को पनिशमेंट करने की पावर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों ने ये भी कोशिश करी कि हम लोगों को ना केवल ज्यादा से ज्यादा पावर अवेलेबल हो आईसीआई के पास, आप लोगों को सभी का आपको पता है कि कहीं ना कहीं पर एक प्रयास रहता है कि वो पावर आईसीआई से कितनी कम हो सके, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोशिश करी कि आईसीआई को ज्यादा से ज्यादा पावर उसके अंदर रहे, और टाइम बाउंड डिस्पोजल के लिए हमें एनेबलिंग प्रोविजन चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारे बोटलनेक्स थे सिस्टम्स के अंदर, उन्हें हमें रिमूव करना था। जो तीसरी इसी के अंदर चीज थी वो ये थी कि हम लोगों ने, जैसे मेंबर्स के लिए सीपीआर कंपलसरी है, वैसे ही हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए भी बोला कि 10 आवर्स का सीपीआर जो है वो हमारे को होने चाहिए। तो इनिशियली काउंसिल ने तय किया कि वॉलंटरी सीपीआर रहेंगे, बच्चों को ये इन्वाइट किया जाए कि आप भी ये सीपीआर प्रोग्राम करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है,
बच्चों के CPRs का पर्पस क्या है? बच्चों को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लेके आना, प्रोफेशन के साथ अटैचमेंट लाना, अल्मा मैटर के साथ अटैचमेंट लाना, ताकि जो है वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशन के बारे में जान सके, समझ सके। इसी तरीके से जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, जैसा कि आपने राजेश जी खुद बोला कि हमारा जो दूसरा सेवियर था डिजिटल हब का, हम लोगों ने डिजिटल हब को लास्ट ईयर शुरू किया, एकदम नया कंसेप्ट था, लास्ट ईयर शुरू किया और इस साल हमने उसको सक्सेसफुली और आगे आगे लेके चले। और आपको मैं बता दूं आज की तारीख में ICI का जितना भी इकोसिस्टम है, जितना भी नॉलेज सिस्टम है, वो सारा का सारा डिजिटल लर्निंग हब के ऊपर अवेलेबल है। ना केवल पूरा सिस्टम अवेलेबल है, ई बुक्स अवेलेबल है, बल्कि आप जानते हैं कि हमारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हमारे जो है वो जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड है, सबका पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो उसके ऊपर अवेलेबल है। आप लोग जो है अनस्ट्रक्चर्ड CPRs के साथ साथ कुछ ऐसे लेक्चर भी हैं जिनमें लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्ड CPR भी मिलते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने मेंबर्स के लिए जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने डिजिटल लर्निंग हब पे इवन अभी जो है वो वर्चुअल सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं वो भी शुरू करे, जिससे कि अपने मेंबर्स को एक क्लिक ऑफ माउस पे घर पे बैठ के सारी सुविधाएं मिलेगी। यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों को समझने की जरूरत है। एक कि इस डिजिटल लर्निंग हब की वजह से ICI जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक थॉट लीडर की तरह काम कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि ICI के मेंबर्स केवल इंडिया में ही इस सर्विस को नहीं ले पा रहे हैं, हमारे जो ग्लोबल मेंबर्स हैं वो भी सर्विस ले पा रहे हैं। और इवन जैसे नेपाल जैसी बॉडी है जो नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ICAN जिसके नाम से फेमस है, उसको भी, उसके मेंबर्स भी हमारी सर्विसेज को विदाउट एनी चार्ज जो है वो ICI से लेते हैं। तो दुनिया के दूसरे इंस्टीट्यूट के लोग भी इस डिजिटल लर्निंग हब को आज की तारीख में यूज करते हैं, जो अपने आप में ICI को एक डिफरेंट लेवल की रिस्पेक्ट जो है वो अवेलेबल कराता है। साथ में एक और बड़ी बात है जो आप लोगों ने कई बार हमारे यहाँ पे बात उठती है कि मेंबरशिप फीस को लेके हमारे लोग कहते हैं कि कोरोना के टाइम पे हमारे को कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट अगर जो है वो ICI की तरफ से हमें मिल पाता। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हम हर साल CP प्रोग्राम में, अगर आप बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो एनुअली रिसीट जो होती है वो 55 करोड़ रुपए का जो है वो हमें एनुअली फीस आता है जो CP प्रोग्राम से करते हैं, और 21 करोड़ रुपए का वर्चुअल सर्टिफिकेट कोर्स से, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज से आता था। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा डिजिटल हब फ्री स्ट्रक्चर CPR दे रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पर ICI ने वो 55 करोड़ रुपए का फोरगो करने का तय कर दिया कि हमारे मेंबर्स के बीच में ये फीस को हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, ताकि मेंबर को जो 2-4-5 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं एनुअली, वो उसे खर्च ना करने पड़े। साथ में जो सर्टिफिकेट कोर्स का फीस था उसको 100 रुपए से घटाकर 30 रुपए के लेवल पे लेके आए, मतलब उसको 30% कर दिया, ताकि मेंबर जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो एक सीरियसनेस के साथ केवल एक नॉमिनल फीस के ऊपर सर्टिफिकेट कोर्स भी करे। तो कहीं ना कहीं पर वहां पर भी अपने आप में एक बड़ा अमाउंट जो है वो फोरगो किया गया। ओवरऑल अगर बात करें तो ICI ने इस कोरोना पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए कम से कम 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वो फोरगो किया, सिर्फ इसलिए कि बच्चों और मेंबर्स के लिए जो भी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं विदाउट एनी चार्ज, जिसके लिए पहले चार्ज लिया जाता था उसको आप लोग जो है वो 1 मिनट के लिए विदाउट चार्ज अवेलेबल कराया जाए। एक इसके अलावा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया है सर, आपको मैं बताना चाहूंगा, वो है हमारा मशीन बेस्ड इवैल्यूएशन का। तो डिजिटली जो हम लोग, हमारी आज की तारीख में आंसर शीट चेक होती थी, हमारे एग्जामिनर के पास जाती थी। आप लोगों को बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली मई में हम एग्जाम नहीं करा पाए, लेकिन नवंबर के एग्जाम के अंदर आप देखेंगे कि 100% मशीन बेस्ड इवैल्यूएशन होगा। मतलब कि आंसर शीट जो है वो स्कैन करके रेटिना टेस्ट के साथ एग्जामिनर्स को दी जाती है, उनके ऑटोमेटिकली टोटलिंग अपने आप होती है, वो अपने आप, बहुत सारे उसके अलग फीचर्स हैं, कोई आदमी कौन चेक कर रहा है वो अपने आप में इंश्योर होता है। तो कहीं ना कहीं पर जो है वो 100% डिजिटल इवैल्यूएशन के लिए हम लोगों ने इस बार जो है वो अचीव कर लिया था। इसके दो फायदे और हैं। एक फायदा है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि अब एक साथ जो है वो, क्योंकि आंसर शीट जानी और आनी नहीं होती है, तो आपको बहुत सारा टाइम सेविंग होती है। तो हम लोगों ने ये भी तय किया कि हम रिजल्ट जो है, जो पहले 75 डेज में मिलता था, जैसे बच्चों ने 15 नवंबर को एग्जाम पूरा किया तो 30 जनवरी को रिजल्ट आता था इंटरमीडिएट का, या फाइनल का 15 जनवरी को आता था, हम दोनों ही रिजल्ट को शायद जो है वो 5 जुलाई के आसपास जो है, 5 जनवरी के आसपास जो है वो आने वाले समय में ला पाया करेंगे। मतलब बच्चों को 20 दिन के करीब का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अपने अगली साइकिल की तैयारी करने का। और एक और फायदा होगा रीवैल्यूएशन का, रीवेरिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, कि रीवेरिफिकेशन में, क्योंकि हमारे पास 50,000 कॉपीज आती है रीवेरिफिकेशन करने के लिए, जो करीबन 4 लाख बच्चों में से, तो करीबन हमारे पास जो है वो 12% बच्चे रीवेरिफिकेशन अप्लाई करते हैं। तो उस केस में कई बार 1 महीने से 2 महीने का टाइम लग जाता है, जो बड़ा पेनफुल होता है। तो उस बात को भी मैं बता दूं कि डिजिटल इवैल्यूएशन होने की वजह से रीवेरिफिकेशन, किसी भी रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट 7 दिन से ऊपर नहीं लगेंगे, और बच्चों को 7 दिन के अंदर अंदर रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट आने लगेगा। एक और चेंज है जो इसके अंदर नहीं लिखा मिलेगा, आपको बता दूं, और वो था एग्जामिनर्स का भी टेस्ट होना।
आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमें सीए बनना है तो 40% नंबर चाहिए, 50% एग्रीगेट चाहिए, लेकिन एग्जामिनर बनने के लिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम एग्जामिनर बनने के लिए भी जो है वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कि आप कहा और आप एग्जामिनर बन गए। और हम लोगों ने कोरोना के टाइम को बड़ी ब्यूटीफुली यूज किया, और इस 5 महीने के पीरियड में आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी मेरे 4,500 एग्जामिनर थे, हमने सबको एम्पैनलमेंट से हटा दिया और बोला एग्जाम करो और वापस आओ। और आपको जान के हैरानी होगी करीबन और एग्जाम का मार्क्स कितने हैं, 72% मार्क्स। तो आपको अगर एग्जामिनर बनना है तो आपको करीबन 72% मार्क्स लाने पड़ते हैं एग्जामिनर बनने के लिए, करीबन नहीं मतलब एग्जैक्टली। और आपको जान के हैरानी होगी कि करीबन 7,000 एग्जामिनर ग्लोबली जो है वो हमारे नए पैनल के अंदर आ गए, जो कि अपने आप में हमारे इवेल्युएशन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे, और दूसरी बात है स्पीड को भी जो है वो मेंटेन इसी तरीके से करेंगे। जो इंपॉर्टेंट अगली चीज थी वो थी स्कॉलरशिप। आप सभी लोग जानते हैं कि करीबन इंस्टीट्यूट जो है वो हर साल 3 करोड़ रुपए के आसपास की स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों को देता है। मेरिट बेस्ड है, नीड बेस्ड है, और किसी को अगर कोई फिजिकली चैलेंज है तो वो उस तरीके से स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन इस 3 करोड़ को हमें 6 करोड़ पहुंचाना था, और साथ में इसकी सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए कि कल को अगर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस है या नहीं है, ये पैसा बच्चों को मिले ही मिले, क्योंकि आप एक बार जब तय करते हैं 1,000 रुपया देना है, 1,500 रुपया, 2,000 रुपये देना, आपको उसको 18 महीने तक देना है, 3 साल तक देना है। तो आप उस बात को कि वो पैसा मिलता रहे, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो या ना हो, हम लोगों ने इस साल 100 करोड़ रुपीज का फंड जो है वो ईयर मार्क करके उसको एक अलग से हम लोगों ने डिपॉजिट कराया कि उसके इंटरेस्ट से जो है वो बच्चों को ये 6 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप जो है, तो एक तो स्कॉलरशिप डबल कर दी, उसका एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, और तीसरी बात है कि वो टाइम बाउंड मैनर में स्कॉलरशिप रिलीज होगी, जो आज की तारीख में 6-6 महीने लगते थे। और चौथी बात जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो अपने आप में जो है वो हम लोगों ने इंश्योर करी। इसके अलावा जो है मैं आपको अगली बात जो बताना चाहूंगा, 1 मिनट, हाँ, जो अगली बात को 1 मिनट के लिए हम लोगों ने एक डीसी का ऑटोमेटिक पोर्टल लॉन्च किया। जैसे कि आप लोग ट्रिब्यूनल जाते हैं, सी स्टेट जाते हैं या ITAT जाते हैं, आपको पता है कि आज मेरी हियरिंग है या नहीं है, कॉज लिस्ट की क्या पोजीशन है, ऑर्डर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक डीसी का, डिसिप्लिनरी कमेटी का एक्सक्लूसिव पोर्टल लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने ये इंश्योर किया कि 1 मिनट के सारे जो है वो डेटा आपको अपडेटेड मिले। आप देख सकता है आदमी ऑर्डर्स जो है वो धीरे धीरे करके हम सारे अपलोड कर रहे हैं, ताकि जो है सारी फैसिलिटीज जो है बड़े ट्रांसपेरेंट वे में जो है वो अपने को मिल जाए। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि डीसी का जो डायरेक्टरेट है, तो आज आप देखते होंगे कई बड़े बड़े रेगुलेटर्स की अपनी एक सेपरेट बिल्डिंग होती है, और हम लोग जल्दी ही पूरी की पूरी डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट को विश्वासनगर शिफ्ट करने जा रहे हैं, जहां पर एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो इनके पास इस तरीके से अवेलेबल होगा। एक और आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि पीयर रिव्यू बोर्ड, तो आप लोगों को पता है कि पीयर रिव्यू जो होता है वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। क्योंकि क्या होता है, हमारे अंदर का अगर कोई कमी है, मेरे अच्छे से पेपर में मेंटेन नहीं कर रहा, तो एक पीयर आता है और आपको बताता है कि आपकी ये कमियां हैं, जिससे कि आप लोग जो है वो अपनी नर्चरिंग अच्छी से कर सके। इस बात को स्पीडी मेंटेन करने के लिए, और पीयर रिव्यू के अंदर रिव्यूअर जो है वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली अपॉइंट होगा रादर देन उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होगी, इस बात को इंश्योर करते हुए। और पीयर रिव्यूअर का भी एग्जाम होगा कि पीयर रिव्यूअर खुद अपने आप में उन सब चीजों को जानता है या नहीं जानता। ये सारी बातें हमने इंट्रोड्यूस करके 1 जुलाई 17-20 को एक नया पीयर रिव्यू स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में लॉन्च किया। आप जानते हैं कि नया कोड ऑफ एथिक्स की भी बात थी, तो नया कोड ऑफ एथिक्स जो आपको पुराना कोड ऑफ एथिक्स 2009 में बना था, उसके बाद 2020 तक अभी तक हमारा नया कोड ऑफ एथिक्स वेट में था, और हम लोगों ने इंश्योर किया कि इस साल हम लोग नया कोड ऑफ एथिक्स भी रिलीज करेंगे। मुझे पता है कि कुछ चैलेंजेस थे, जैसे 15% वाला जिन लोगों ने गलत बताया, एक्चुअली में वो 15% जो था वो केवल और केवल पाई के केस में था, वो भी हम लोगों ने 30% कर दिया। दूसरी बात है, कुछ और ऐसे चैलेंजेस थे जिनके अंदर लोगों ने कुछ कंसर्न्स रेज करी थी, तो उन सारी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए उनको पोस्टपोन कर दिया गया कि फ्यूचर डेट में वो इंप्लीमेंट होंगे। लेकिन बचा हुआ जो कोड ऑफ एथिक्स था, जिनमें मेंबर्स को बहुत सारी ईज दी गई है, उनको बहुत सारी फैसिलिटेट किया गया, उनको बताया गया कि आप ये काम भी कर सकते हो जो आप काम पहले नहीं कर सकते थे, उसके साथ एक नया पॉजिटिव कोड ऑफ एथिक्स जो है वो 1 जुलाई 2020 को वो भी हम लोगों ने लॉन्च किया। एक और बात कहना चाहूंगा आप लोगों से यहाँ पर सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम ऑडिट की क्वालिटी की बात करते हैं तो समय समय पे बातें उठती हैं कि क्वालिटी को लेके हम लोगों का जो है वो 1 मिनट के लिए क्वालिटी नहीं है। मान लीजिए किसी ने कहा क्वालिटी नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं जी मेरी क्वालिटी है, तो आप इसको मेजर कैसे करेंगे कि क्वालिटी है या क्वालिटी नहीं है, क्योंकि ये तो परसेप्शन का खेल है। तो ऑडिट की क्वालिटी को मेजर करने के लिए हमें बनाने पड़ते हैं ऑडिट की क्वालिटी के इंडिकेटर्स, और जिसको हम बोलते हैं ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो अपने उस मैच्योरिटी मॉडल को बनाने के लिए और उस इंडिकेटर्स को बनाने के लिए हम लोगों ने एक नई पहल करी जो दुनिया के अंदर 2nd नंबर पे है। अमेरिका के बाद इंडिया ने शुरू किया और वो इस्टेब्लिश किया सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी। तो आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 2 से 3 महीने बाद हमारा जयपुर का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है
वो पूरी तरीके से भव्य तरीके से आप सब लोगों के लिए फैसिलिटेट होने वाला है। करीबन 25 एकड़ की जो है वो अपने पास एक बहुत बड़ा एक वो है कैंपस है, जहाँ पर हमारे मेंबर्स के लिए भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी को इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पर हम बहुत बड़ी लाइब्रेरी और बहुत बड़ी फैसिलिटीज इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि हमारे मेंबर्स और बच्चे वहाँ रेजिडेंशियल एक्टिविटीज जो है वो अपने आप में उस तरीके से कर सकें। आप सभी लोगों को पता है कि मेरा एक बहुत बड़ा पैशनेट सब्जेक्ट है कि बच्चों का जो एग्जाम हो वो केस स्टडी बेस्ड हो, वो मोरोटा लर्निंग नहीं हो, वो 1 मिनट के लिए केस स्टडी हो। और हम लोगों ने 2017 में जब नया एजुकेशन करिकुलम लेके आए थे तो उसमें इसको इनकलकेट भी किया था। अब हम लोग जो है वो एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हैं सर। और मैं आपको ये बता दूं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे 16 के 16 पेपर इंटरमीडिएट और फाइनल के जो हैं वो केवल और केवल केस स्टडी के ऊपर जो है वो हुआ करेंगे। सर आप सब लोग जानते हैं एक बात को कि टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल लेती जा रही है। मैं इसके बारे में अलग से भी बात आपसे करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो हमारी रूटीन जॉब्स हैं वो धीरे धीरे सिस्टम्स को आउटसोर्स हो जाएंगी। और अल्टीमेटली जो है वो हमारे को अपनी जो ऐसी जॉब है जिनमें मेरा विजडम चाहिए, जिनमें मेरा स्केप्टिज्म चाहिए, उन जॉब्स के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा। रीस्किलिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज की तारीख में उठता है वो है फॉरेंसिक टेक्निक्स, जो डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं। अब मैं अगर राजेश जी और मैं या नंदा जी इस एज में आके हम सोचें कि हम लोग जो है ये सब चीजें सीख लेंगे और कर लेंगे, नेचुरली सीख तो लेंगे लेकिन अपने आप में चैलेंजिंग है। तो क्यों ना हम लोग जो है बच्चों को बचपन से ही ये सब चीजें सिखाएं। आप लोग देखते होंगे आज की तारीख में आपके व्हाट्सएप पे ऐड आता होगा, 6 साल से 14 साल के बच्चे को कोडिंग सिखाई जा रही है ऑनलाइन। सेम वे में हम अपने बच्चों को डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स अपनी जो है वो आर्टिकलशिप के टाइम से सीखते हैं। इस बात को इंश्योर करने के लिए हमने एक मॉडल बनाया L1 to L5। L1 मींस लोएस्ट लेवल, मीनिंग देयर बाय जब वो आईटीटी की ट्रेनिंग कर रहा है हम लोगों ने वहीं पर ही उसको फोरेंसिक की ट्रेनिंग के जो है मॉड्यूल्स इनबिल्ट कर दिए हैं। फिर उसके बाद L2 मॉडल है, मतलब हम एक 3 दिन का एक नेशनल कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। L3 है जो FAFD का कोर्स है। L4 में हमने फोरेंसिक्स लैब बनाई और L5 के अंदर हम लोगों ने गुजरात फोरेंसिक यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें आप लोग जो है फोरेंसिक में इवन डिप्लोमा अपने आप में ले सकते हैं। इसके साथ अपनी स्टडी मटेरियल की क्वालिटी को लेके भी कई बार बातें होती हैं। 2017 में हम लोगों ने एक सी चेंज किया, बहुत सारा रिवाइज किया, लेकिन नेचुरली मटेरियल को हर साल अपने आप में अपडेट करने की जरूरत होती है। तो हम लोगों ने एक क्वालिटी रिव्यू ग्रुप इस्टेब्लिश किया जो पूरे स्टडी मटेरियल को एक वाओ एक्सपीरियंस देने के लिए जो है वो अपने आप में काम कर रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों की वेबसाइट रिसेंटली भी नई बनाई गई है, मच फ्रेंडली है, बहुत इजी है, एक वॉल है उसके ऊपर। तो जैसे मान लीजिए आप लोग देखते होंगे कि आपके व्हाट्सएप पे कई बार एक वो आता है, एक इमेज आती है, उस इमेज पर क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी चीज को अगर मूवी देखनी है तो मूवी देख सकते हो, उस टाइप से रहता है। सेम वे में हम लोगों ने एक आईसीआई की भी वॉल क्रिएट करी वेबसाइट के अंदर जिसमें एक सिंगल साइन ऑन पे पूरा आईसीआई आपके पास अवेलेबल है। तो वो मच फ्रेंडली है, मच यूजर फ्रेंडली है, उसमें ज्यादा डिटेल आपको समझ में आती है और ज्यादा आपके लिए ईजी है। जो अगला इंपॉर्टेंट रिफॉर्म चाहिए था वो था इलेक्शंस के अंदर रिफॉर्म, और मैं आपको बता दूं कि काउंसिल ने अभी रिसेंटली उसको पास किया और वो था एनीवेयर वोटिंग इन इलेक्शन, मीनिंग देयर बाय रीजनल इलेक्शन। कहने का मतलब अगर आप जो है वो राजेश जी सपोज कीजिए आप इलेक्शन वाले दिन बाई चांस दिल्ली की जगह आप पानीपत के अंदर अवेलेबल है या आप चंडीगढ़ में अवेलेबल है या अमृतसर में अवेलेबल है और आप एक प्री डिटरमाइंड वे में काउंसिल को इंटीमेट करते हैं कि हाँ मैं उस दिन जो है वो वहां पर जाके इस तरीके से वोट डालने की बात करने वाला हूँ, तो आप लोग जो है वो पूरी नॉर्थ इंडिया में, तो ये नहीं कि आप नॉर्थ के और आप जाके हैदराबाद में वोट डालोगे, दैट इज नॉट बीइंग परमिटेड राइट नाउ। बट अगर आप जो है वो नॉर्थ में हैं और किसी भी इलाके में आप हैं या आप गुड़गामा में हैं और गुड़गामा के एक बूथ की जगह दूसरे बूथ पर वोट डालना चाहते हैं, तो वो सारा फैसिलिटेशन जो है वो आज की तारीख में काउंसिल ने रिसेंटली अप्रूव किया और अब हम उसको जल्दी ही नोटिफाई करने वाले हैं कि आप किसी भी उसमें इलेक्शन का वो कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारी अपने आप में हमारी कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात। हम लोग 80-90-95% फर्म्स प्रोप्राइटरशिप में चलती हैं, कहीं ना कहीं पर ग्लोबल कंपटीशन आपके सामने है। हम अपनी फर्म्स को कैसे बड़ी बनाएं, हम अपने आप में कैसे बड़े नेटवर्क्स बनाएं, कैसे हम मर्जर्स करें, इस बात के लिए हम लोगों की हमेशा चिंता रहती है। हम लोगों ने इस बार एक नया ग्रुप बनाया है जो मर्जर और नेटवर्किंग की गाइडलाइंस को ईजी करने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई भी आराम से बना सके, कोई बहुत ज्यादा झंझट ना हो, बाद में कोई परेशानियां ना हो। लेकिन उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो अगर कोई दूसरा बड़ा नेटवर्क है वो तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है लेकिन हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, हम जुड़ना चाहते हैं, हम किससे जुड़े हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम लोगों ने ये अभी काउंसिल ने परमिट किया कि इवन जो इंस्टीट्यूट की जो बड़ी इवेंट्स हुआ करेगी उसमें भी हम लोग नेटवर्किंग मीट किया करेंगे। तो एक फर्म अपना एक स्टॉल लेके बैठ जाएगी और बोलेगी मुझे अपने आप को बड़ा बनाना है, आप में से कौन मुझसे जुड़ना चाहता है। तो इस तरह के फैसिलिटेशन करेंगे
जो कि अपने आप में कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हो, जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा ही परमिटेड हो, लेकिन अपनी फर्म्स को लार्जर फर्म्स बनाने के लिए हम लोग जो है वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला 22 नंबर पे आप देख पाएंगे कि हम अपने आप में बड़ी फर्म्स कैसे बनाएं, उस बात को इंश्योर करें। काउंसिल ने ये भी पास किया कि आपको जो सीपी प्रोग्राम्स हैं, वंस एक बार कोरोना हट जाएगा तो उसके अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस इंट्रोड्यूस की जाएगी। हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा 1 जुलाई 2020 से हमने फर्स्ट टाइम एवर के हम लोगों ने वर्चुअल क्लासेस शुरू करी स्टूडेंट्स की, जिनमें बच्चों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और ये कोरोना की बात नहीं है, हम लोगों ने तय किया इट विल बी अनइंटरप्टेडली अवेलेबल। तो प्रैक्टिकली क्लास सुबह 7 से 9 है, शाम को 7 से 9 है, ताकि बच्चा अपनी आर्टिकलशिप की तरफ ध्यान दे और उसको ये क्लासेस ना केवल लाइव अवेलेबल है बल्कि बाद में भी वो यूट्यूब पे देखना चाहता है तो आईसीआई के यूट्यूब पे जाके वो इन क्लासेस को देख सकता है। तो प्रैक्टिकली बेस्ट ऑफ द फैकल्टी, इवन हम लोगों ने अभी डॉक्टर गिरीश आहूजा जी से बात करी है, वो भी अवेलेबल होने जा रहे हैं जल्दी इन क्लासेस को लेने के लिए। और बड़े अच्छे स्पीकर जो है हमारे जो फैकल्टीज हैं, हम उनको भी लेके आ रहे हैं ताकि वो लोग सब जो है वो इन वर्चुअल क्लासेस के अंदर बच्चों को ऑनलाइन एड्रेस करें, क्योंकि टाइम के हिसाब से भी बढ़िया है, उनको खर्चा भी उसके अंदर जो है वो नहीं होता है। एक और बात मैंने आप लोगों से हमेशा कही है कि हमें अपने प्रोफेशन को ग्लोबल बनाना है। मैंने आपको दिखाया था कि विजन डॉक्यूमेंट के अंदर कि किस तरीके से हम अपने आप को ग्लोबल बना सकते हैं, और उस बात की शुरुआत करने के लिए हमने ये तय किया कि इस वर्ष हम लोग जो है कम से कम 40 कंट्रीज में अपने आप को बढ़ाएंगे। तो हमने शुरुआत की थी जब हम 34 कंट्रीज या सिटीज के अंदर अवेलेबल थे, और उसके बाद हम लोगों ने इस जर्नी को शुरू किया। और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि पिछले 6 महीनों में, करीबन 5.5 महीनों में, हम लोगों ने अपने आप को 19 सिटीज के अंदर या 19 कंट्रीज के अंदर जो है वो अपने आप को एक्सपेंड कर लिया है। तो आज जहां पर हमने 34 से शुरू किया था, आज हम 53 तक जो है वो इसको पहुंच चुके हैं, थैंक्स टू द एंटायर काउंसिल, जिन्होंने पूरे होल हार्टेडली इसको अपने आप में सपोर्ट किया। एक और बड़ा इशू था हमारे पास काउंसिल मिनट्स का, ये थोड़ा इंटरनल है, ई नोट्स का, वो भी हमारा वो है। एक हम लोग 10 दिन का एक सिग्नेचर इवेंट्स भी शुरू करने जा रहे हैं जयपुर के अंदर और हैदराबाद के अंदर, जो हम आप लोगों से, मैं आपसे अलग से इसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आप लोगों से मेरे को करनी थी। मैंने कुछ बातें और भी हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, जो मैं आप लोगों से किसी और ओकेजन पे करूंगा, क्योंकि अभी उस सब चीज़ों के लिए वो नहीं है। लेकिन ये वो सब बातें थी जो आईसीआई ने पिछले करीबन 5 महीनों के अंदर हम लोगों ने अपने आप में करी। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक बार रूबरू होना चाहूँगा कि किस तरीके से हमारा जो फ्यूचर के अंदर हम लोग जो है वो हमारे सामने चैलेंज है और किस तरह की एक्टिविटी जो है वो हमारे को करने की जरूरत है, कैसे हमारे को फ्यूचर रेडी। तो मैंने जब एक बात बोली, अपने राजेश जी का फोन आया और उन्होंने बोला कि अपने को एक प्रोग्राम करना है, तो मैंने उनको बोला कि आप एक प्रोग्राम करिए और बात करिए कि हाउ वी कैन बी अ फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल। तो उस तरीके की बात जो है वो हम लोग को करने की जरूरत है। यहाँ तक अगर कोई बात अगर आप करना चाहें राजेश जी तो मैं बात कर सकता हूँ, नहीं तो आगे मैं अपने टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ और मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि किस तरीके की हमारे को जो है वो अपने आप में जरूरत है। राजेश जी आप सुन पा रहे हैं? प्लीज गो अहेड सर, गो अहेड। क्वेश्चन अभी है नहीं कोई भी, आप? हाँ सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर। तो करीबन 20 मिनट में जो है वो अगले मैं आप लोगों के और लूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा सर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईसीआई का जो विजन है वो हमेशा वर्ल्ड लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी के रूप में रहा है, बी ए रेगुलेटर एंड डेवलपर ऑफ द ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स विद द वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज हमारा हमेशा उद्देश्य रहा। आप सभी लोग जानते हैं कि आईसीआई जो है वो एक नेशनल स्टैंडर्ड सेटर के रूप में हमेशा जाना जाता है। सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ। आज की तारीख में 3 लाख से ज्यादा मेंबर और 8 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। हम लोगों के पास जो है वो 34 की जगह आज की तारीख में बोलूंगा कि 53 ओवरसीज चैप्टर्स या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं, 164 ब्रांचेस हैं, अपनी खुद की 91 बिल्डिंग्स हैं, 86 ऑडिटोरियम है जिनमें एक साथ 16,000 लोग एक साथ पढ़ सकते हैं, 154 रीडिंग रूम्स हैं, 157 आईटीटी लैब्स हैं, 6 डेटा एनालिटिक्स लैब्स हैं और 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो ये बातें आपको पता होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा एक बार के लिए रिवाइज करूं आप लोगों को कि अल्टीमेटली जो है वो आपका जो 1949 में केवल कुछ 100 मेंबर से एक इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था, एक हेड ऑफिस से शुरू हुआ था, आज की तारीख में कितना विशाल एक अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन आप सब लोगों ने, एक वॉलेंटियर्स ने। तो मैं आईसीआई में बोलता हूँ हमेशा जो काउंसिल मेंबर, रीजनल काउंसिल मेंबर, ब्रांचेस के लोग हैं या इवन स्टडी सर्कल के लोग हैं, ये प्रैक्टिकली ये जो करीबन 1500 लोग जो हैं ये वॉलेंटियर्स हैं, जो बिना किसी मैं कहूँगा कि रेमुनरेशन के, बिना किसी आपने जो मतलब एक होता है कि इंटरेस्ट के, केवल अल्मा मैटर के लिए जो है इस तरीके से 24/7 काम करते हैं। और उसका एक लाइव एग्जांपल है इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिश होना। रिस्पेक्टेड कोलीग्स, एक और बात कहूँगा हम सब लोगों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जब हम मेंबर्स की बात करते हैं तो आईसीआई को भी कैसे फ्यूचर रेडी अपने आप में बनना है, तो कैसे आईसीआई का या किसी भी बॉडी का जर्मिनेशन होता है,
कैसे उसे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है, कैसे उसे कंजर्व करना है और कैसे उसे डिस्ट्रक्शन से बचना है। ये कुछ चीजें हैं जो हम सब लोगों को सीखने की जरूरत है। और इसके अंदर जो है वो क्या कहता है कि जब आप जर्मिनेशन की बात करते हैं तो आपको अपने मेंबर्स को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज देनी पड़ेगी। उनको आपको दिखाना पड़ेगा कि उनका करिकुलम जो है वो रेलेवेंट है। आपको दिखाना पड़ेगा उसके अंदर कि आप लोग जो है जो सिस्टम्स हैं वो 1 मिनट के लिए ग्लोबल जो है और कॉमन प्रोसेसेस, कॉमन सिस्टम्स हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, आपको एमओयू साइन करने पड़ेंगे, आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज देनी पड़ेगी। और ये नहीं कि सीए ही सीए की नॉलेज लेगा, अकाउंटेंसी की नॉलेज पूरी सोसाइटी को देनी पड़ेगी, आपको मेंटरिंग करनी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन सीपी प्रोग्राम देने पड़ेंगे, आपको पार्टनरशिप्स करनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव स्टोरीज देनी पड़ेगी। और फाइनली कंजर्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपको जो है वो अपने आप में बनाना चाहिए विद द एथिकल वैल्यू। फाइनली एक और बात इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, आईसीआई के लिए मैं बात करूंगा तो, कि हमें एलिटिसिज्म माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ओ मैं बहुत कुछ हूं, नहीं। हमें हमेशा ग्राउंड लेवल पे ह्यूमिलिटी के साथ ग्राउंड लेवल पे रहना चाहिए और केवल इंस्टीट्यूट को, ब्रांचेस को, स्टडी सर्कल को या रीजनल काउंसिल को केवल सीपीडी प्रोवाइडर नहीं बने रहना चाहिए। उसको जो है वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो इकोसिस्टम को अपने आप में प्रमोट करती है। सर अगर मैं अपने और पूरे प्रोफेशन के सामने कुछ चैलेंजेस की बात करूं तो मैंने पूरे चैलेंजेस को करीबन 6-7 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं सिर्फ 3-4 पॉइंट्स की बात आप लोगों से करूंगा विद द लिमिटेड टाइम। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सबके लिए, आप सबके लिए, मैं राजेश जी आपके लिए, नंदा जी के लिए, अतुल गुप्ता के लिए, सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि 1 मिनट के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है जो समझना, वो ये है कि आज हम कौन से युग में जी रहे हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसके अंदर जो पहला फीचर है वो है डीलिमिटेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। मतलब पहले एक समय था जब हम इनकम टैक्स पढ़ा करते थे, सर्विस टैक्स पढ़ा करते थे, या हम लोग बीआईएफआर का प्रोविजन पढ़ा करते थे। आज कौन से युग में जी रहे हैं सर? जीएसटी 164 कंट्रीज में एप्लीकेबल है। इंडिया पढ़ते हैं तो वो एक्चुअली में आईएफआरएस है। वैल्यूएशंस, इंसॉल्वेंसी, इंटरनेशनल टैक्सेशन, टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट, ये सारे के सारे ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ग्लोबल जुरिस्डिक्शंस है। मतलब अगर एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और वो जीएसटी इंप्लीमेंट करता है तो क्या वो इंडिया का जीएसटी हैंडल नहीं कर सकता? आंसर है, कर सकता। तो अपने आप में हमारे लिए आज की तारीख में केवल लोकल कंपटीशन नहीं रह गया, हमारे सामने ग्लोबल कंपटीशन जो है वो धीरे धीरे पैर पसार रहा है। ऑडिट नेचुरली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेंगे, लेकिन नॉन ऑडिट सर्विसेज की अगर बात करें और टेक्नोलॉजी युग की बात करें तो आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई सर्विस दे सकता है। तो ये तो अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं, ये हम सब लोगों के लिए टास्क है। कि अगर मेरा लॉ जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल है और 164 कंट्री में एप्लीकेबल है, तो क्यों नहीं मैं दूसरी कंट्री में भी जाके अपने ऑफिस खोल सकता हूँ? क्यों नहीं मैं अपने आप में ग्लोबल फुटप्रिंट्स बनाऊं? क्यों नहीं मैं अपने आप में जो है वहां पर भी अपनी सर्विसेज रेंडर करना शुरू करूं? तो मैं ऑडिट तो नहीं कर सकता, और मैं आपको बता दूं ऑडिट भी कर सकते हो आप। करीबन 15 कंट्री ऐसी है जिनके अंदर आप ऑडिट का लाइसेंस भी ले सकते हो। मैं आपको जल्दी एक सेमिनार करके हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पैदा हो गई कि जब अगर डीलिमिटेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो केवल और केवल ये वाली बात थोड़ी है कि आप केवल और केवल इंडिया में ही सर्विस दे सकते हो, आप तो ग्लोबल लेवल पे भी सर्विस दे सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो हम सब लोगों के लिए चैलेंज भी है और अपने आप में जो है वो अपॉर्चुनिटी भी है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस दे आर डूइंग। हमारे बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को या एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो नए नए तरीके ढूंढता है। तो वो क्या करता है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है, वो नए नए तरीके करता है। तो पहले क्या होता था कि जब नंदा जी ने एग्जाम पास किया या राजेश जी ने एग्जाम पास किया तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर 99% जो है वो टेंजिबल एसेट होती थी और 1% ही इंटेंजिबल होती थी, यानी गुडविल वगैरह की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज क्या है, अगर 3000 करोड़ की बैलेंस शीट है तो उसमें 2000 करोड़ की तो गुडविल ही है जी, वैल्यूएशन के हिसाब से। अब ऐसे वातावरण में आप ऑडिट कैसे करेंगे जब तक आपको उसके प्रोविजंस अपने आप में नहीं पता है? तो आपका तो मन घबराएगा कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ और मुझे गुडविल के प्रोविजन अगर मुझे नहीं पता वैल्यूएशन ठीक हुई या नहीं हुई है, तो अपने आप में कल को ये ना होगी वैल्यूएशन गलत। इसी तरीके से 1 मिनट के लिए पहले हम लोग जो है बात करते थे आईपीओस की, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, शेयर रिजर्व प्रीमियम। आज कहाँ है? आज तो वेंचर कैपिटलिस्ट है। तो वेंचर कैपिटल ने जो पैसा लगाया उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इन सब बातों को हमें तो अपने आप में नया तरीका है काम करने का। अब जब बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ तो क्या हम लोग को अपनी जो नॉलेज है हमें अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा।
हमें आप क्या करना पड़ेगा, अपने आप को गुडविल वैल्यूएशन के प्रोविजन सीखने पड़ेंगे। तो यही तो हुआ कि बीआईएफआर का प्रोविजन सीखते सीखते हमें इंसॉल्वेंसी का एग्जाम पास करना पड़ गया, अगर मुझे उसके अंदर काम करना है। तो अपने आप को समय के साथ अडाप्ट करना, अपने आप को समय के साथ जोड़ना, अपने आप को नई स्किल्स को लेके आना, अपने आप को रीस्किल करना, इसके लिए अपने आप में जरूरत बन जाती है। जो तीसरी चीज है अपने आप में, इंसॉल्वेंसी और एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दूं तो डिजिटल डिसरप्शन, ABCD। जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से दिल्ली से निकले और मानेसर पहुंचे, और मानेसर में एक व्यक्ति जो है वो टिकटिंग कर रहा था और 50 रुपए की टिकट काटता है, तब आप जयपुर के लिए जा सकते हैं। अभी क्या होता था सर, 20-20 मिनट लगते थे, तो सभी लोग परेशान रहते थे, तो वो कहते थे यार बड़ा बेकार सिस्टम। तो क्या हुआ कि एक टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी ने इस बात को समझा कि भाई साहब राजेश जी जरा गुस्सा मान रहे हैं, तो उसने क्या करा, टेक्नोलॉजी वाले ने टेक्नोलॉजी लगाई और टैग लगा दिया, और अब आप राजेश जी की गाड़ी दौड़ती हुई जो है वो टोल प्लाजा को पार कर जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो मर्सीलेस है। क्या उस व्यक्ति, कभी हम लोगों ने किसी ने सोचा कि उस व्यक्ति का जो 10,000 रुपये मिलते थे, जो टिकटिंग करता था और उसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, उसका क्या होगा, उसके घर पे कैसे जाएंगे, उसके बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने नहीं सोचा। लेकिन अगर ध्यान से समझे हम सब लोग, तो इसी के दौरान एक नई जॉब का भी जन्म हुआ, एक नई एक्टिविटी का भी जन्म हुआ। और वो एक्टिविटी क्या थी? वो एक्टिविटी थी रिकंसिलेशन की, क्योंकि 10,000 गाड़ियां उस टोल प्लाजा से निकली और वो पैसा जो है वो फास्टैग कंपनी ने कलेक्ट किया। अभी टोल प्लाजा वाले को फास्टैग से पैसे लेने हैं और वो कहता नहीं जी 8,000 गाड़ियां ही गई है। तो इन दोनों के बीच में जो रिकंसिलेशन करने का काम है, ये अपने आप में एक नई तरह की जॉब है। तो अगर वही टिकटिंग वाला अपने आप को रीस्किल कर लेगा, अपने आप को जो है वो एक्सेल की और स्प्रेडशीट की नॉलेज ले लेगा, तो वो ब्लू कॉलर से व्हाइट कॉलर जॉब करेगा, एसी रूम में बैठ के बेटर जॉब करेगा। कहने का मतलब जॉब्स जो है वो ऐसा नहीं है कि जॉब चली जाएगी, बात ये है कि जॉब का अपने आप में रूप बदल जाएगा। तो अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था हमारे बच्चे 15 साल बाद जो जॉब करेंगे उनमें से 65% जॉब आज की तारीख में अवेलेबल ही नहीं है, वो अपने आप में न्यू एज जॉब्स होंगी। तो इसलिए अपने आप में हमारे को अपने आप को समझना पड़ेगा। तो दूसरा एग्जांपल बताता हूँ प्रोफेशन से रिलेटेड। आज की तारीख में जब मैं ऑडिट करता हूँ, और अगर मैं सपोज कीजिए कि मैं किसी ऑडिट के अंदर 100 आवर्स का टाइम तय करता हूँ, आज की तारीख में 90% जो टाइम है मेरा वो ओमिशंस को चेक करने में लगता है। क्यों? क्योंकि राम का शाम ना हो गया हो, जीएसटी नंबर ठीक ना डला हो, ये ना हुआ वो ना हुआ, और उसकी वजह से केवल थोड़ा ही समय मुझे मिलता है जब मैं कमीशन को चेक करता हूँ, मतलब मेल ऑफ आईडी इंटेंशन को चेक करता हूँ। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी, ABCD आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ABCD का मतलब A फॉर एप्पल नहीं है, सब खत्म हो गया, A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और B फॉर ब्लॉकचेन। तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी एंट्री अपने आप होने लगती है मेकर चेकर कंसेप्ट से। तो आपको बता दूं कि एक रोबो आता है साहब, एक रोबो क्या होता है, एक एप्लीकेशन होती है। तो रोबोट नहीं है कि वो खड़ा होएगा चलेगा, नहीं साहब। एक 5500 रुपए की एप्लीकेशन आती है और 1 अक्टूबर 2020 से जीएसटी के अंदर ई इनवॉइसिंग आ रही है। ई इनवॉइसिंग का मतलब है स्टैंडर्डाइज इनवॉइस आ रही है। तो एक रोबो को 5500 रुपए की इनवॉइस, 5500 रुपए का जो आता है, उसको अगर आप इनवॉइस स्कैनर में लगा देंगे और अगर वो इनवॉइस जो है स्कैनर में अवेलेबल हो जाएगी और जैसे वो रोबो पढ़ेगा वो जर्नल एंट्री अपने आप कर देगा। जब जर्नल एंट्री सिस्टम करेगा तो गलती होने के चांस ही नहीं है। तो आपका जो 90% टाइम जो जिस चीज के लिए लगता था, जो रिपीटेटिव जॉब्स के लिए लगता था, वो प्रैक्टिकली आप आने वाले 10 साल में आपको बोला जाएगा थैंक यू वेरी मच, इस जॉब की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे उस 10% जॉब को 100% बनाना पड़ेगा। मतलब मुझे जो है अपने स्केप्टिज्म और विजडम वाली जॉब को, जो रूटीन जॉब नहीं है, जो रिपीटेटिव जॉब्स नहीं है, मुझे उसको 100% बनाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं उसको 100% बनाऊंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी रीस्किल करने की, और वो है मेरा COD, दैट इज साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा एनालिटिक्स। और उसके साथ एक कीवर्ड भी जुड़ता है, वो है हमारा एथिकल, कोड ऑफ एथिक्स। तो कहीं ना कहीं पर मुझे इस चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए अपने आप को न्यू एज जॉब्स के हिसाब से अपने आप को रीस्किल करने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा और रिपोर्ट दिखाता हूँ जो आपको थोड़ा सा जो है वो आपको हेल्प आउट करेगी। सर ये है रिपोर्ट, जरा ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि क्या लिखता है 2022 में क्या होने वाला है। तो 2022 में नहीं होगा तो 2023 में हो जाएगा, 24 में हो जाएगा। नीचे पढ़िए 75 मिलियन जॉब लॉस। क्या कहता है कि ये जॉब लॉस है, 75 मिलियन, 7.5 करोड़ जॉब दुनिया से चली जाएंगी। जरा 2 नंबर पे पढ़िए क्या लिखा है सर, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड पेरोल। ओहो, हमारा ज्यादा काम नहीं होता है, तो 7 नंबर पढ़ लेते हैं, अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स। तो क्या कहता है वो, अगले 3 साल में 7.5 करोड़ जॉब जो है वो अपने आप में सिस्टम से चली जाएंगी। ये कौन सी जॉब है? अगर ध्यान से देखिए सारी की सारी पढ़ के, सब रिपीटेटिव जॉब्स हैं। लेकिन ऊपर क्या कहता है 133 मिलियन नई जॉब आएंगी।
मतलब 13 करोड़ नई जॉब आएंगी, और उसमें पहले नंबर पे कौन सी जॉब है? वो है डेटा एनालिटिक्स की जॉब है। तो कहने का मतलब क्या कि जो मेरी रूटीन जॉब्स हैं, जो मेरी रिपीटेटिव जॉब्स है, जो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है, जो मेरी डिपार्टमेंटल वर्क्स है, जो मेरे क्रॉस इंटरप्राइजेज वर्क है, जैसे लोन अप्रूव कराना, इंश्योरेंस क्लेम्स, कंप्लायंसेस, एक्सपेंसेस ट्रैकिंग, या जो लॉ स्किल जॉब है, ये सब की सब सिस्टम्स को आउटसोर्स हो जाएंगी। और अल्टीमेटली कौन सी जॉब बचेगी? दैट रिक्वायर्ड द ह्यूमन जजमेंट एंड दैट रिक्वायर्ड कि आपको स्केप्टिज्म, पर्सनल कंसल्टेशन, जिसके अंदर आपको एनालिटिकल स्किल्स जो है वो आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऑडिट टीम भी बदल गई। तो अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा, पहले अगर राजेश जी की टीम में एक ऑडिट पार्टनर है, वो उनके साथ 2 ऑडिट मैनेजर हैं, किसी ऑडिट पे जाते हैं, तो ये जो ऑडिट मैनेजर है दूसरा, ये खतरे में है, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी जॉब जो है अगले 3 साल में कौन ले लेगा? साइबर एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट ले लेगा। आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमारे जो है पार्लियामेंट पैनल ने बोला कि जितने भी बैड लोन्स हैं उन पर कंपलसरी फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फिर उसके बाद आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला कि 200 करोड़ से ऊपर के जितने भी लोन है उन सबका फोरेंसिक ऑडिट होगा। आईबीए आज की तारीख में क्या कर रहा है कि 10% से ज्यादा केसेस के अंदर फोरेंसिक ऑडिट की बात करता है। तो धीरे धीरे हमारे को वो स्किल्स लेनी पड़ेंगी जिन स्किल्स की वजह से, तो क्या है, या तो मैं ये एक्सपर्ट लूंगा या फिर मैं ऑडिट मैनेजर को ये स्किल दे दूं, तो वो अपने आप में बचा रह सकता है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को रीस्किल करें, अपने आप को न्यू एज जॉब्स के हिसाब से। तो टोल प्लाजा वाज है एग्जांपल कि वो टोल प्लाजा पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो मर्सीलेस है। डॉक्टर्स के ऑपरेशन ऑटोमेटिक हो रहे हैं, अगर इंजीनियर्स की मशीनें ऑटोमेटिक चल रही हैं, अगर टोल प्लाजा पे टिकट अपने आप कलेक्ट हो रही है, तो आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि इम्यून है, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी जॉब को कुछ नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली हम सब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि आईसीआई ने जो है वो काफी सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम कराना शुरू किया, डिजिटल कॉम्पिटेंसी मैच्योरिटी मॉडल हम लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया, दुनिया ने आईसीआई का बनाया हुआ मॉडल अडॉप्ट किया। आज की तारीख में यूरोप में हमारा मॉडल चलता है, कौन सा? डीसीएमएम, ऊपर देखिए राइट साइड में टॉप में। मतलब क्या है, इसको संधि विच्छेद करें, डिजिटल कॉम्पिटेंसी मैच्योरिटी मॉडल। मतलब आप डिजिटल के अंदर कितने कॉम्पिटेंट हैं, इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए। आज की तारीख में अगर जब हम लोगों ने के सामने कोरोना आया तो हम लोगों ने प्रोग्राम किया जिसके अंदर हमारे को चैड हैरिस जो कनाडा से आया, उसने बताया वो तो ऑफिस ही नहीं चलाता है, उसके पास तो वैन के अंदर वो जो है वो 80 लोगों की टीम जो है पूरी की पूरी वर्क फ्रॉम होम करती है, और वो वैन से दुनिया में घूमता है और पूरा का पूरा ऑफिस चलाता है। कैसे? अपनी डिजिटल कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करके, अपने आप को डेटा एनालिटिक्स या दूसरी टेक्निक से अपने आप को जोड़ के। तो आईसीआई ने ना केवल फोरेंसिक्स लैब्स लगाई, उन्होंने रोबोटिक प्रोसेस के बारे में बताया, उन्होंने ये बताया कि आपको 1 मिनट के लिए ई लर्निंग के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी इसलिए शुरू की गई जिससे कि हमारे मेंबर जो है वो अपने आप को रीस्किल कर सके, ताकि वो आने वाले चैलेंजेस को अपने आप में अपॉर्चुनिटीज के रूप में कन्वर्ट कर सके। सर और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से मैं कर सकता था, लेकिन नेचुरली हम लोग को कहीं ना कहीं पर विश्राम भी देना होता है अपनी बात को, मतलब बात को कि हम लोग जो है वो आगे उस चीज को लेके जाएं। सिर्फ मैं आप लोग को ये लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा जो कि ओवरऑल सारे पूरे के पूरे डिस्कशंस को कंक्लूड करती है। ये 6 स्टेप्स हैं, 6 मंत्रास हैं जो मेरी तरफ से आप लोगों को हैं। अगर आप लोगों को लगे आई एम यंगर ब्रदर टू ऑल ऑफ यू, मतलब मैं राजेश भाई आपका भी यंगर ब्रदर हूँ, नंदा जी का भी यंगर ब्रदर हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया प्रेसिडेंट के रूप में, लेकिन मैं आपको एज ए एल्डर ब्रदर मानते हुए, जैसे मैं अरुण भाई साहब को बोलता हूँ, ऐसे मैं आप सबको बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए कि प्लीज आप ये 6 बातों को जरा समझे, ध्यान दें और एक बार के लिए इनको मनन करें। पहली बात, अपने आप को जो है उससे निकाल दीजिए कि आप एक जो है मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वी आर इन द प्रोफेशन, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ द प्रोफेशन। लेकिन आपको जो प्रोफेशन भी चलाना है तो उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल और केवल मेरे को जो है वो मैं एक छोटा सा ऑफिस लेके बैठ जाऊंगा, प्रोप्राइटरशिप करूंगा, मैं अपने आप में एक सिंगल विंडो चलाऊंगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं चलेगा सर। हमें कहीं ना कहीं पर आज की तारीख में अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले 1 मिनट के लिए पूरे सिस्टम के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल जो है वो हमें दिखानी पड़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा सर कि आज की तारीख में हम सोचे कि राजेश जी सोचे कि मैं इनकम टैक्स भी देखूंगा, मैं जीएसटी भी देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा, मैं वो भी देखूंगा। नहीं चलेगा। अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे ही क्लाइंट बड़ा होने लगता है वो स्पेशलिस्ट आदमी को ढूंढने लगता है। तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को डिविजन्स डेवलप करनी पड़ेंगी स्पेशलाइजेशन के। तो पार्टनरशिप इस बात पे ना हो कि मैं और राजेश जी दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लें और एक पर्टिकुलर ऑडिट के लिए हमारे को इसका बेनिफिट हो जाएगा। पार्टनरशिप इस बात के लिए हो कि राजेश जी इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं और अतुल गुप्ता XYZ का एक्सपर्ट है, तो वो अपने आप को ये कह सके कि यस, हम दोनों ने पार्टनरशिप इसलिए करी कि सिनर्जीज डेवलप होती है। अगर अपने पास एक एसएससी आएगा तो दूसरा भी काम वो उस तरह का वो कर पाएगा।
लेकिन हमें सिंगल विंडो से डिविजनल सिस्टम के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर तीसरा, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। मैंने ABCD के बारे में बात की आपसे, तो हमारे को जो है वो डेटा एनालिटिक्स, तो ये मत सोचिए कि फोरेंसिक ऑडिट के लिए डेटा एनालिटिक्स है। इवन आप अपने इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में, GST की प्रैक्टिस में, कंपनी ऑडिट की, कंपनी लॉ की प्रैक्टिस में, आप सबके अंदर डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं। जो कि अब मैं आपको VLOOKUP का एग्जांपल बताता हूँ। पहले जो हम लोग डेटा सर्च करने के लिए, तो एक डेटा में 500 लिस्ट है, दूसरे डेटा में 2000 लिस्ट है। राजेश जी ने आवाज लगानी शुरू करी, राम है, मैं ढूंढ रहा हूँ 2000 में है। फिर उन्होंने बोला श्याम है, मैंने 2000 को देखा, बोला नहीं है। आज VLOOKUP क्या करता है, 10 सेकंड के अंदर आपको बता देता है कि इन 2000 में 500 में से कितने हैं और कितने नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर पावर ऑफ दी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हमें अपने आर्टिकल्स को बताना पड़ेगा, क्योंकि वही तो फ्यूचर है। हम सब लोग तो पतझड़ की तरह से एक समय आएगा जब हम धीरे धीरे करके सब सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर हम नए पत्तों को जन्म नहीं देंगे, नए प्लांट्स नहीं सीड करेंगे, तो अल्टीमेटली प्रोफेशन कैसे चलेगा। तो इसलिए हमारे को उनकी IT स्किल्स के ऊपर लगातार हमें काम करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट है हम अपनी कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर, अभी आप लोगों को डिसिप्लिनरी के सारे जजमेंट हमने लाके देने शुरू कर दिए। क्या पर्पज है? पर्पज है कि वो गलतियां मैं तो नहीं कर रहा कहीं, तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है उस हरी किताब को दोबारा उठाएं, जजमेंट्स को दोबारा देखना शुरू करें और ध्यान करें कि कहीं हम वो गलती तो नहीं कर रहे। हम ऑडिट का असाइनमेंट कोई कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पता नहीं, मैं जो साइन नहीं कर सकता हूँ मैं साइन कर रहा हूँ, कहीं मैंने वो स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं किया जो स्टैंडर्ड मुझे फॉलो करना था, मैंने NOC नहीं दिया जो मुझे लेना था। ये सब गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है। बड़ा फर्म बनना है, अपने को बड़ी नेटवर्क बनाने हैं, अपने को बड़ी लार्जर फर्म्स बनाने हैं। आज जैसे GST का जमाना है, 1 मिनट के लिए, पहले क्या होता था, VAT में अगर दिल्ली का कंसल्टेंट है तो हरियाणा का काम नहीं करता था, क्योंकि हरियाणा का प्रोसीजर अलग था, लॉ अलग था, अपने आप में उसके बहुत सारे बोटलनेक्स थे अलग अलग तरह के। आज आप जब अगर मान लीजिए दिल्ली में बैठे हैं तो आपको पैन इंडिया सर्विसेज देने का ऑप्शन है, क्योंकि लॉ एक जैसा है, इनकम टैक्स एक जैसा है, डायरेक्ट टैक्स एक जैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स एक जैसा है, कंपनी लॉ एक जैसा है। तो आपके पास अगर आप पैन इंडिया अवेलेबल है तो आपके पास मच बेटर अपॉर्चुनिटीज आती हैं एज कम्पेयर टू मैं प्रोप्राइटरशिप के अंदर उस चीज को करता हूँ। और फाइनली ये इंश्योर करिए कि आपके ग्लोबल फुटप्रिंट्स हो। तो मैं एक आपको आह्वान करता हूँ आप सब लोगों को, प्रेसिडेंट सर, आपकी आवाज गई। प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट सर, आपकी आवाज गई सर। प्रेसिडेंट साहब, फोन मिलाना सर, मैं भी मिलाता हूँ उनको। राजेश जी। जी सर, जी सर। हाँ जी भाई साहब, बोलिए बोलिए। मेरा आया पूरा या बीच में बंद हो गया था? नहीं, बंद थोड़ा हो सा गया था। 3-4 मिनट पहले बंद है, 2 स्लाइड पिछली बंद हुआ है, बस चला दो उसको। अच्छा अच्छा, ये देखा आपने? जी सर, जी सर। नहीं, वे फॉरवर्ड मैंने आपको बताया था, वो आया था क्या? आ गया था, आ गया। अच्छा अच्छा, चलिए सर, वे फॉरवर्ड आया था जी, वे फॉरवर्ड आया था जी सर, बस वही था सर। सर मेरी बात समाप्त हो गई सर, मैंने कर सर वे फॉरवर्ड एक बार दोबारा बता दें सर, वो सही से लोग नहीं सुन पाए। अच्छा अगर अच्छा, आप समय है तो। हाँ सर। मुझे स्क्रीन शेयर करने का राइट बंद कर दिया राजेश जी आपने। नहीं 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 सर, आपके पास है, बिल्कुल है। नहीं नहीं, वो मना कर रहा है। अरे सर, आप बिल्कुल, एक सेकंड, वो हो, आपने रीलॉगिन किया है सर। ठीक है, ठीक है सर। लो सर, ऐसा कैसे हो सकता है? हम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं सर?
मैं इस स्लाइड पे था जी, लास्ट वाली पे, ये वे फॉरवर्ड पे, और मैं बता रहा था आपको कि अपने को 6 मंत्रास की मैंने बात करी, शायद आप लोगों ने सुना होगा। मुझे नहीं पता कि कहाँ तक मैं था और कहाँ पे आपने सुना। आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, यस सर। हाँ जी सर, आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो मैं 6 मंत्रास की मैंने बात करी सर, कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब लोगों को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल जो है वो अपने आप में दिखाने की जरूरत है सर। ऐसा नहीं चलेगा कि हम प्रोप्राइटरशिप में काम करेंगे, छोटा सा ऑफिस चलाएंगे, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। नहीं साहब, हम लोग प्रोफेशन में है, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ द प्रोफेशन, लेकिन स्टिल हमें अपने आप को लीडरशिप स्किल दिखा के लार्जर विजन के साथ हमें अपने आप को काम करने की जरूरत है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा था कि वो सिंगल विंडो नहीं चलेगी कि राजेश जी सोचे कि मैं इनकम टैक्स भी देखूंगा, जीएसटी भी देखूंगा, कंपनी लॉ भी देखूंगा। कहीं ना कहीं पर हमारे को अपने आप में डिविजन्स बनानी पड़ेंगी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। और इवन अगर मैं पार्टनरशिप करने की बात कर रहा था तो मैं कह रहा था आप लोगों से कि पार्टनरशिप इसलिए नहीं करनी कि मुझे ऑडिट असाइनमेंट लेना है, पार्टनरशिप इसलिए करनी है कि नंदा जी बोलेंगे मैं कैपिटल मार्केट का एक्सपर्ट हूँ, अतुल गुप्ता तू XYZ का एक्सपर्ट है, राजेश जी आप इस ABC के एक्सपर्ट हो, तो लेट अस जॉइन हैंड्स, ताकि हम लोग जो है वो अपने आप में सिनर्जीज डेवलप होती है जब हम लोग स्पेशलिस्ट लोग आपस में बैठते हैं। आप लोगों ने डॉक्टरों में देखा होगा, एक डॉक्टर नर्सिंग होम खोलता है तो वो क्या करता है, 5 स्पेशलिस्ट को बुलाता है, ताकि अल्टीमेटली एक के लिए काम कराने आएगा तो दूसरे की भी बात करेगा पेशेंट जो है, जबकि वो पेशेंट है, हम लोग तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए वो दूसरी बात करेगा तो वो शायद तीसरे के लिए भी उसको लगे कि हाँ मैं यहीं पर ही चला जाऊं। इसी तरीके से हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को और अपनी टीम को ट्रेनिंग्स दें, जो है वो नई टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग जो है वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बात कही कि हम तो पतझड़ के साथ पुराने पत्ते जो है वो धीरे धीरे सिस्टम से जड़ ही जाएंगे, लेकिन अपने आप में हम लोग अगर नई प्लांटेशन नहीं करेंगे, नए सीड्स नहीं लगाएंगे तो प्रोफेशन आगे कैसे चलेगा। तो इसलिए अपने जो बच्चे आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे फ्यूचर है उनकी प्रोफेशन है, उनके अंदर भी आईटी स्किल्स दें, अपने अंदर भी आईटी स्किल्स दें, डेटा एनालिटिक्स सीखे, साइबर सिक्योरिटी सीखे, जो कि अपने आप में हमारे को न्यू एज जॉब्स के लिए तैयार करती है। साथ में मैंने बोला कि कोड ऑफ एथिक्स का, तो अपने आप में जो ग्रीन बुक थी जो हम लोगों ने अब छोड़ दी, उस ग्रीन बुक को दोबारा उठाएं। नए जजमेंट आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पुराने हमारे किसी भाई ने कर दी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, एनओसी नहीं लिया, या किसी भी तरह की कोई गलती हम लोग जो नॉर्मली करते हैं वो गलतियां मुझे नहीं करनी है। मुझे लार्जर फर्म बनना है, मुझे नेटवर्क बनाने हैं, मुझे अपने आप में ज्वाइन हैंड्स करने हैं। आज 95% प्रोप्राइटरशिप में ग्लोबल कंपटीशन को आप कैसे फेस कर सकते हैं मुझे नहीं पता है सर। अपने आप में जब तक हम लार्जर फर्म्स नहीं बनाएंगे और नेशनली नहीं इंटरनेशनली फर्म्स नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपने आप को 1 मिनट के सिस्टम के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने आप को हमें लार्जर फर्म्स की तरफ सोचना चाहिए। मैं एक बात कह रहा था आपके पीछे कि आप लोगों से कि पहले एक समय हुआ करता था वीएटी में मेरे को दिल्ली का काम करता हूँ तो हरियाणा का नहीं कर सकता क्योंकि उसके लॉ अलग है, प्रोसीजर अलग है। लेकिन आज जीएसटी में मैं पूरे पैन इंडिया का काम कर सकता हूँ, इनकम टैक्स में मैं पैन इंडिया का संभाल सकता हूँ, कंपनीज एक्ट मेरा पूरा नेशनल है, तो क्यों नहीं मैं ऐसा करूं कि मैं पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइडर हूं। और फाइनली मैंने ग्लोबल फुटप्रिंट्स के लिए बात करी कि हम लोगों को एक अगले 5 साल का एक टारगेट लेना है कि अगर मेरी 100 रुपए की रिवेन्यू है तो उसमें से अगले 5 साल में मेरे को 50 रुपए की रिवेन्यू कम से कम ग्लोबली आएगी। आज मेरे पास जितने म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स हैं, आज की तारीख में आपको मैं बता दूं कि ऑडिट खाली इंडिया में नहीं कर सकते, आप 15 कंट्रियों में ऑडिट कर सकते हो, आपके पास ऑडिट लाइसेंस की वो पावर है। मैं आपको, हम लोग जल्दी उसके लिए एक प्रोग्राम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन ऑडिट की पावर मेरे पास है, कंसल्टेंसी मैं दे सकता हूँ, जो आज का लॉ मेरे ऊपर एप्लीकेबल है वो पूरी दुनिया में अवेलेबल है। तो और टेक्नोलॉजी के अंदर मैं मास्टर हूँ, तो क्यों नहीं मैं अपने आप में अपने ग्लोबल फुटप्रिंट्स बनाता और ये इंश्योर करता कि अगले 5 साल में मेरी टर्नओवर का 50% जो है वो ग्लोबली अपने ऑपरेशन से आएगा। तो कहीं ना कहीं पर मैंने अपनी बात को कंक्लूड किया था ये कहते हुए कि आपको एक लीडरशिप दिखाने की जरूरत है जिसमें आप लोग डिवीजन बनाए स्पेशलाइजेशन की, अपनी हर टीम को न्यू एज जॉब्स के हिसाब से तैयार करें, बेस्ट ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करें, लार्जर फर्म्स बनाएं और ग्लोबल फर्म्स बनाएं। यही मंत्रा जो है हम सबको लेने की जरूरत है, जो हमारे को अल्टीमेटली हमारे लिए ना केवल सर्वाइवल के लिए बल्कि हमारी ग्रोथ के लिए भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये बात मैं जो है सर आप लोगों के साथ कर रहा था जब मैं ये वाली बात आपसे करी। सर कुछ क्वेश्चन है सर, आप लेंगे या कुछ ले लें सर? क्वेश्चन प्रेसिडेंट सर? नहीं ले लेंगे, आप बोलिए ना। लेंगे सर, बिल्कुल लेंगे। क्वेश्चन आंसर चैट में है सर, आप या मैं पढ़ूं सर? जैसा आप कहेंगे सर वैसे ही करेंगे सर आप पढ़ें बेटर है सर। नहीं इसमें चैट में तो 0 है सर। नहीं क्वेश्चन एंड आंसर में, अच्छा वो भी होता है क्या? Q&A। अच्छा Q&A, नो ओपन क्वेश्चन।
मेरे पास आ रहा है नो ओपन, मेरे पास नो ओपन क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा सर, मैं वो पढ़ देता हूँ। राकेश भार्गव जी क्वेश्चन है इनका, एज पर द लेटेस्ट डिवाइस every member has to open Zoom, but where there are more than one member in a firm, everybody has to open Zoom and see separately on Zoom. Where is the current scenario? It will not be better to registered firm so that all the member may be connected to by single device. देखिए सर, मैं सिर्फ ये बात कहूंगा, दिल मांगे मोर। तो अभी क्या होगा ना कि कंट्रोल कैसे करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे? ठीक है सर, अपने भाई हैं सब लोग, है ना? जी सर, जी सर। आप कैसे कहेंगे? तो पार्टनर तो एक फॉर्म के अंदर 100 हैं जी, 50 हैं जी, वो बोलेंगे हमने 50 नहीं एक लॉगिन से देख लिया। तो कहीं ना कहीं पर तो सर अपने को बनाना पड़ेगा ना, कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कैलाश चंद अग्रवाल जी का। He asked the SSP portal asked for bank statement oblique attendance sheet oblique work register for an article terminated, which is almost 25 years old case. What to do and how to remove the article name from SSP portal? हाँ, वो आप ऐसा है कि ये एक सिस्टमेटिक इशू है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब से, मुझे एक मेल डाल दें president@ici.in पे और सीसी कर दें atul@servicetax@gmail.com पे। मैं इसका सिस्टमेटिक इशू का रिजोल्यूशन कर दूंगा। इसमें कोई आप बैंक स्टेटमेंट ना दे पाएंगे, ना आपको देनी होगी। मैं बात करके इसको रिजोल्व करूंगा, और वो भी ये नहीं कि आपके लिए कराऊंगा, सभी के लिए कराएंगे सर, एक साथ पूरे सिस्टम के। सर एक मैडम है सुमित राय सिंगला जी, कहते हैं कि पीपीटी कैसे मिलेगी सर? वो आप मेरे को भेज देना, आई विल शेयर विद द ऑल। कौन सी पीपीटी? तो मैंने पीपीटी तो कोई दिखाई नहीं जी, अभी दिखाइए सर। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश टेक्नोलॉजी वाली दिखा दूंगा। वो तो न्यू इनिशिएटिव वाली तो हम वैसे ही भेजते रहते हैं सब लोगों को कि क्या क्या फिर भी सर भेज देना, मैं शेयर कर दूंगा। टेक्नोलॉजी वाली हम भेज। एक राजेश मित्तल जी हैं सर, पूछते हैं इन टुडेज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड every government application form or returns are submitted through the digital signature certificate. I as a chartered accountant want to sign financial statement through e-sign or digital sign to save time rather than traditional way of print out and manually, but I always threaten to sign it digitally because it might be possible that it is not valid as per Information Technology Act, or maybe clients banker not accept in due to the financial are not physically signed. Also in physical signature. सर राजेश जी गलत क्वेश्चन गलत है, अपडेटेड नहीं है भाई साहब, वो डिजिटली साइन हो सकता है। अलाउ कर दिया सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आत्माराम सरगिया जी, करोल बाग से, आप अच्छी तरह से जानते हो उनको। नो एक्शन इज, जानता हूं सर, मैं महेंद्र जी को भी जानता हूँ, राजीव कोहली जी को भी जानता हूँ, सुनील जमीजा जी को भी जानता हूँ सर, सभी को। सर नो एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट द मेंबर हु आर डूइंग मच मोर टैक्स ऑडिट as prescribed in the code of ICI. गलत है सर, आपको बता दूं सर, सबके अगेंस्ट में एक्शन चालू है। अभी हाई कोर्ट से कुछ लोगों ने स्टे लिया था, हम लोगों ने वो भी क्लैरिटी ले ली, और अभी आपको अगले कुछ दिनों में ऑर्डर भी मिल जाएंगे अपलोडेड सर। जिन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑडिट टैक्स ऑडिट किए थे, काउंसिल ने ये तय किया था वन टाइम मेजर में, क्योंकि हमारे पास केस इतने हो गए थे कि 1 मिनट के लिए जिन लोगों ने ज्यादा, क्योंकि वो शुरुआती टाइम था, तो 200 से ऊपर वाले क्योंकि 44 AD और AE भी होता है, तो 200 से ऊपर जिनके भी नाम के आगे आ रहे थे, सबने काउंसिल ने यूनानिमस डिसीजन लिया 3-4 साल पहले कि उन सबके अगेंस्ट में इंक्वायरी शुरू की जाए, और सबके अगेंस्ट में इंक्वायरी शुरू हो गई है, और आपको करीबन 200-300 ऑर्डर जो हैं वो अगले 6 महीने में आपको मिल जाएंगे सबके अगेंस्ट। सर 2 डिमांड है, ना कि क्वेश्चन है सर। मेंबर्स की डिमांड है कि सर ये कोविड-19 में की वजह से ये वर्चुअल सीपी आवर इस साल के लिए कम से कम 10 की जगह 40 अलाउ कर दिए जाए। 40 तो होते ही नहीं ना एक साल में, एक साल में मिनिमम 40 तो करनी है ना सर। मिनिमम 40 थोड़ी है, 20 और 30 है, 100 होता है 3 साल। 25 और 15 है ना, 25 और 15 सर। हाँ, तो 15 तो आपको 15 तो क्या 15 की जगह 50 कर लीजिए, वो जो अनस्ट्रक्चर्ड है। नहीं, स्ट्रक्चर्ड के लिए 10 किया हुआ है ना, अभी 10 किया हुआ है। हाँ तो 31 अगस्त तक के लिए 10 किया हुआ है। इसको एक बार जैसे अभी देख लेते हैं वैक्सीनेशन वगैरह की क्या पोजीशन है, तो एक बार के लिए देख लेते हैं, फिर इसको बढ़ा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। एक सर और एक आया है कि सर एक कोई डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर इशू किया जाए, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में कोई भी फोन मेल। सर वो है ना नेशनल कॉल सेंटर बना रहे हैं, उसके लिए आपने देखा होगा हमने टेंडर भी निकाला था अभी। जी सर, तो नेशनल कॉल सेंटर बनेगा, जैसे आप अमेरिकन एक्सप्रेस में या सिटी बैंक में फोन करते हैं या कहीं पे फोन करते हैं आप एयरटेल में, आपको वैसा ही नेशनल कॉल सेंटर ICI में मिलेगा सर अगले 6 महीने। जी सर, थैंक यू सर। पूरा मतलब 20-25 लोगों का कॉल सेंटर रहेगा,
आपको वैसे ही आंसर देगा जैसे आप किसी क्रेडिट कार्ड में या बैंक के लिए फोन करते। वेरी नाइस सर, थैंक यू वो सर। पूरा काम कर रहे हैं। मैंने आपको एक WIP की भी लिस्ट थी, वो मैंने जानबूझ के स्किप कर दी, मैं बंद कर दी वो, क्योंकि मैंने कहा WIP तभी बात करेंगे जब हो जाएगा, वरना ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ मतलब होता है ना कि एक भाई बता रहे हैं कि ये होगा होगा होगा, तो फ्यूचर टेंस में बात नहीं कर रही, जो हो गया है वो बताया। और आप अगर WIP में देखेंगे तो डिजिटल लॉकर भी है, नेशनल कॉल सेंटर भी है। सर एक दूसरा ये है कि आपने अभी बहुत सारे पॉइंट्स बताए जो कि मेंबर्स और स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन बीइंग ए पास्ट रीजनल काउंसिल मेंबर मेरे को भी इतने सारे नहीं पता। तब मेरा एक सजेशन है कि इस तरह के प्रोग्राम सर फ्रीक्वेंटली किए जाएं, जिससे कि सभी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को सर ये बेनिफिट हो सके। सर मैं बिल्कुल ऐसा है ना सर, मैं क्या कर देता हूँ कि आप लोगों को ना कुछ छोटा सा वीडियो क्लिप बना के मैं डलवा देता हूँ यूट्यूब पे चैनल पे ICI के। क्योंकि होता क्या है कि ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में भी बताए थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक मास मेल भी भेजी सब लोगों को ये सारी चीजें बता के। तो हमारा क्या होता है कि हम देखिए नेचुरली आपका अटेंशन स्पैन जो होता है ना वो उतना नहीं होता है सर, हमें बहुत सारी जिम्मेवारियां कोरोना की वजह से भी हैं, ऑफिस भी चलाना है। तो आप एक प्रोग्राम करेंगे भी तो राजेश जी उससे कुछ मतलब मैं कई 40 प्रोग्रामों में जाके तो नहीं बोल पाऊंगा, तो उसका तरीका ये है कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना के, जैसे अभी हम लोगों ने 1 जुलाई को बनाया था, तो वो हम आपको दे देते हैं, उसमें आप लोगों को सर्कुलेट करते हैं। Thank you, sir. Thank you for addressing, motivating, and guiding us, and giving the very much valuable 6 mantras to all. And thank you very much, sir. Or I request Rajiv Poli ji says something, sir. Poli साहब. हाँ जी सर। अतुल जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू अराउंड। हमेशा शुरू से चाहे वो सर्विस टैक्स का क्या था, तो आई कोट्स वहाँ में विवेकानंद, व्हेन यू स्टॉप when you don't grow then you are as good as dead। तो मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअली ग्रो करना ही करना है। बड़े इनिशिएटिव लिए हैं आपने, SSPL क्वेरीज रिजॉल्व किए हैं, चैप्टर्स बनाने 100 चैप्टर्स ओवरसीज, यू आर डूइंग MRAs, लार्ज फर्म्स, एनर्जीज, साइज ऑफ स्केल, एंड हमें सारी इंटरमिंगलिंग करके सारी की सारी लार्ज फर्म्स बनाने टू हैव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्पेशलाइजेशन। एंड जो मशीन बेस्ड जितनी आ रहा है, तो वो भी थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ फॉर अस, वो हमने करना है। वी हैव टू मेंटेन क्वालिटीज एंड योर स्लाइड ऑन जर्मिनेशन, ग्रोथ, कंजर्वेशन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज वेरी नाइस। जो अच्छा जो माली होता है साथ के साथ वो जो है ना वीडिंग करके अपने फसल को ठीक रहना है। तो हमारा भी फसल है, यू हैव टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स एंड ग्रो एट अ मच हायर रेट। नहीं तो इन दिस रेस व्हेन एवरीवन गोइंग टू ग्रो, हम पीछे रह जाएंगे। And the ABCD mantra of artificial intelligence, blockchain, robotics, e-invoicing, cyber security, data analytics is the future, because हमें जितना कार्य करना है उसके अंदर जो inferences, we have to draw the inferences and do the skill upgradation, ताकि client का फायदा, repetitive jobs से उसका फायदा कोई नहीं होता। Sir, thank you from the core of our heart for such an enlightenment talk, and it's a real pleasure to have you around, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Now I request Nanda ji sir. सर आप रुकेंगे ना सर? प्रेसिडेंट सर मैं 5 मिनट हूँ नंदा जी के एक बार शुरू करने के बाद। सर एक मिनट के क्वेश्चन है सर। छाबड़ा साहब का क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ CABF इज नॉट अवेलेबल ऑन SSP पोर्टल। मैं आपको ये कह रहा हूँ सर, CABF का पोर्टल है ना, अगले 15 दिन में लॉन्च हो जाएगा। डेडिकेटेड पोर्टल बनाया है जिसमें आपको बैलेंस शीट भी मिलेगी। तो कई बार लोग पूछते हैं ना CABF का पैसे का क्या हुआ, हम लोगों ने वो भी बना के अपलोड करा दिया है सर, ताकि 1 मिनट के लिए दिख जाए कि 1 रुपया भी जो है, मैं आपके मंच से बताना चाहूंगा सब लोगों को, 1 रुपया भी जो है, 1 रुपया बोल रहा हूँ सर, 1 रुपी, सिंगल रुपी भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में यूज नहीं किया जाता है। तो उसके 2 ही हेड है, आप अगर देखेंगे तो 2 करोड़ आए और 2 करोड़ गए। तो डोनेशन रिसीव, डोनेशन ग्रांट प्रोवाइड निकाल के रख ले, मेरे सामने बुलाऊंगा आपको, ठीक है? मैं रख लूंगा। एक पैसे का भी वो नहीं किया था। तो बैलेंस शीट भी अवेलेबल रहेगी, रसीदें भी मिलेंगी, ऑनलाइन आप देख भी सकते हो कि मेरा पुराना कितना पैसा गया हुआ है। आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं लाइफ मेंबर में, तो वो भी सारी फैसिलिटी उसके अंदर जो है वो बनी रहेगी। CABF का पोर्टल पे काम कर रहे हैं सर, 15-20 दिन में लॉन्च हो जाएगा। सर एक सुमित जी का सजेशन है कि प्लीज मेक 2 सेपरेट YouTube चैनल ऑफ ICI, one फॉर मेंबर एंड अदर फॉर स्टूडेंट इफ पॉसिबल। सर अभी मैं बात कर लूंगा, लेकिन अभी क्या था कि हमारा पहला जो ध्येय था वो ये था कि ज्यादा लोग जो हैं वो 1 मिनट के लिए, क्योंकि आपको YouTube चैनल पे स्क्रॉल जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है सर कि
आपको ये मतलब जो आपके पास आता भी है ना, वो व्यूअर देखता है कि कितने व्यूअर्स हैं आपके पास या कितने नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंट। तो हर चीज को इकोसिस्टम के हिसाब से करना पड़ता है, ताकि सामने वाले लोग, आज जैसे देखें, आप देख पा रहे होंगे कि सब बड़े से बड़े डिग्निटरीज आ रहे हैं, तो वो लोग भी 1 मिनट के लिए एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हाँ हमारा व्यूअरशिप कितनी है। जी सर, जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज एलोबरेट सम ऑन पार्ट टाइम सीओपी। पार्ट टाइम सीओपी तो नहीं हो सकता है सर, वो तो बना है बिल्कुल, क्या बिल्कुल सर, वो तो प्रोफेशन में खराब ही करता। मैं कहना नहीं चाहता सर, वो छोड़िए सर इस मुद्दे, मैं इस मुद्दे पर क्या बोलूं सर। बड़ी मुश्किल से तो उसको बंद किया इंस्टीट्यूट ने कुछ साल पहले, मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है 5-7 साल पहले, 10 साल पहले ये बंद किया गया। Thank you, sir. Thank you once again for your valuable time and address us and giving all these things, sir. And now I request our worthy honorable Central Council member CA Charanjot Singh Nanda ji. मैं नंदा जी के कहने से पहले 1 ही मिनट बोलूंगा सर आपको नटशेल में। आप जितने सख्त रेगुलेटर होते हैं ना सर, अल्टीमेटली शुरू में गंदा लगता है, लेकिन जैसे पेरेंट्स जितने सख्त होते हैं, बच्चा उतना ही तरक्की करता है। जी जी सर, जी सर। ठीक है ना जी। तो 1 मिनट के लिए आपको बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमेशा, मैं तो सिस्टम से 6 महीने बाद रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन आपको हमेशा बात रखें सर कि जितना सख्त आपको रेगुलेटर मिले उतना ही 1 मिनट के लिए समझ लीजिएगा कि वो प्रोफेशन का भला चाह रहा है या प्रोफेशनल्स का भला चाह रहा है। क्योंकि लीनियंसी कर करके तो हम लोगों ने देख लिया ना सर, लोग हमारे को एसोसिएशन ज्यादा बोलते हैं एज कम्पेयर टू दी रेगुलेटर। जी सर, जी सर, जी सर। आपके पास जो आते हैं लोग, वो बोलते हैं ना सीए एसोसिएशन में आके बड़ा अच्छा लगा, तो हमें बताना पड़ता नहीं सर, सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है सर। सर thank you sir, thank you very much. And now without taking too much time, over to straight away Nanda ji sir. थैंक यू सो मच राजेश जी। आज मैंने बड़ी शिद्दत के साथ अतुल जी के पूरे लेक्चर को सुना, बड़ी बार सुना मैं, लेकिन आज तो उसमें शफा या मजा कुछ और ही था। देखो जी, अतुल जी को सुनो तो ऐसा लगता है एक शेर के नजरिए से कि सलीके से हवाओं में यूं खुशबू सी घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में यूं खुशबू सी घोल देते हैं, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो मुश्किलों में भी मीठा बोल देते हैं। वेरी गुड, वाह वाह सर, वाह। I have seen Atul ji start his career. I have admired his technical skills, GST, service tax. इन्होंने बहुत मेहनत करी, rose from a very normal background to he'll be retiring as a president of the institute. इससे ज्यादा तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिंदगी में और सपने कोई नहीं होता। लेकिन इन्होंने जिंदगी में हर काम को असूल से किया है। मैं बात आपके पब्लिक फोरम में कह रहा हूँ, इन्होंने हर काम को असूल से किया है। किसी काम असूलों के लिए अपने प्रिंसिपल कभी नहीं तोड़े कि जी चलो मैं ये काम सरकमवेंट करता हूँ। जो भी किया प्रोफेशन के हित को सर्वोपरि रख के किया। लोग बहुत नाराज हुए, सीधी सी बात है साहब। कहते हैं ना, तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। आप इनके दुश्मन से भी पूछो तो कहते हैं बंदा ठीक है जी। जिस आदमी ने अपनी शिद्दत के साथ इंस्टीट्यूट के लिए वर्किंग की, सुबह से शाम रात बैठा रहा, और लोगों को ये खामा ख्याली है कि ये जो लॉकडाउन इसमें लोग आराम कर पाए, ऐसा नहीं है। इस लॉकडाउन में जिन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया वो तो कोई टाइम ही नहीं है। ऑफिस आप सुबह निकल 11 बजे जाते हो, शाम को 7 बजे घर आ जाते हो। लॉकडाउन तो सुबह उठते हो, काम शुरू, रात को सोते तक काम है। दोपहर को भी 2 मिनट लेटे फोन आ गया, करो ही करना शुरू कर दिया। सो लॉकडाउन हैज प्रूव्ड टू एंश्योर अस मोर वर्क देन नॉर्मल टाइम्स। आपने इनकी सुना, इनकी विजन को सुना। इनका विजन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को जिस तरह इन्होंने टेक्नोलॉजी सेवी बनाया है, इनका अंदर का विजन ये है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट टेक्नोलॉजी सेवी हो जाए। और आज का मेरे टॉपिक जो है उसकी शुरुआत में करूंगा 2 बातों से। देखिए, इस लॉकडाउन के बाद अगर किसी की जिंदगी में पैसे आए हैं, किसी ने अगर कमाया है, तो एक तो राधा कृष्णन डालमिया जी ने कमाया, जिनके स्टोर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर फूड ग्रेन्स के, या टेक्नोलॉजी कंपनियों ने कमाया है। आप अमेरिका चले जाएं, यूएस के अंदर आज की डेट के अंदर भी नेस्डेक और डॉ जोन अपने टॉप पे हैं। हिंदुस्तान भी नियरिंग, हिंदुस्तान के बोर्सेस भी इंटरनेशनल सारे कैक्स, डेक्स, हैंसिंग, निकाई सब टॉप पे चल रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनीज ने सारा बीड़ा उठा रहा है। 2 ही शेयर चल रहे हैं सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी और फार्मा, और उन सबसे ऊपर अपना भाई रिलायंस चल रहा है।
जिसमें सारी दुनिया इन्वेस्ट करने को घूम रही है। अभी राइट इशू आया था 800 रुपए के अंदर, अब देखिए आप क्या इशू आ गया। सो मोटा मोटी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज इस क्राइसिस में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिस को रीऑर्गेनाइज करें। मेरी बात का कतई बुरा ना माने, स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रॉपर खतरे में है, टैक्स ऑडिट आप देख रहे हो, फेसलेस असेसमेंट शुरू हो गई है। तो हर तरफ आज की डेट में परेशानी है काम धंधे में। तो आप कैसे अपनी प्रैक्टिस को न्यू जनरेशन करोगे? मेरी एक बहुत बड़ी पीपीटी है जिसके ऊपर मैंने एक बार पहले यहाँ तबसरा किया, मैं वही दिखाऊंगा, लेकिन उसमें सिर्फ न्यू जनरेशन प्रैक्टिस के बारे में मैं बात करूंगा। तो मैं एक बार अपना कंटेंट शेयर करता हूं, फिर मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूं। ये 1 मिनट दे देना। वो कहां पे था भाई? देखिए जी, आपको अपनी फर्म को ग्रो करना है एज ए स्टार्टअप। मेरी आवाज आ रही राजेश जी? यस सर, यस सर। मेरे पास कोई तकरीबन 20 से 25 मिनट है। मैं उसमें बताना चाहूंगा आपको कि हमें अपनी फर्म को एक स्टार्टअप की तरह शुरू करना है। क्या करना है आपने? जो सीए फर्म्स डिजायर्ड सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे, देखो जी, कहते हैं ना, हम चिरागों की भला कैसे हिफाजत करते, हम चिरागों की भला कैसे हिफाजत करते, ये वक्त तो सूरज को भी हर रोज बुझा देता है, लेकिन बुझने के बाद सूरज अगले दिन सुबह निकलता है पूरे शबाब पूरे जलाल के साथ। आज अगर हम पेंडेमिक में, आज अगर हम कोविड-19 में कहीं थोड़ा सा मार खा गए तो हमें पूरी शिद्दत के साथ वापस आना, प्रैक्टिस को रीऑर्गेनाइज करना है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी सीए प्रैक्टिस को डिजायर्ड सक्सेस दिलवाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन, सीए अपने ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन करते बढ़िया नहीं कर पाते, इसके लिए आप किसी एमबीए को रखें। और बहुत सारे सीए फर्म्स जो मेन पार्टनर्स होते हैं उनकी वाइफ्स एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जो बहुत बढ़िया होता है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ ना रखें, एडमिनिस्ट्रेशन किसी और को दे अपने ऑफिस में, और आप सिर्फ कोर बिजनेस पे फोकस करें। दूसरा है सर्विस डिलीवरी। देखो जी, सर्विस डिलीवरी क्या होता है? आपने देखा बिग 4 में, बड़ी कंसल्टिंग कंपनी में लोग रात को काम करते रहते हैं। रात को काम करना अच्छा काम नहीं है, लेकिन वो अपनी डेडलाइंस पे जिंदा रहते हैं। मान लीजिए मंडे को देना है तो हम जैसी फर्म वाले कहेंगे छोड़ो सर, मंडे तो रक्षाबंधन, ट्यूसडे दे देंगे। वो ऐसा नहीं है, वो पहले देख लेंगे रक्षाबंधन है तो तय करते समय डेट ही ट्यूसडे की करेंगे, और अगर मंडे की डेट है तो चाहे जो मर्जी हो जाए वो काम करके उसी दिन देंगे। सर्विस डिलीवरी की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है फर्म्स के ग्रो करने में। 3 चीजें बताऊंगा फर्म ग्रो करने में। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेक्नोलॉजी। जो तीसरा पॉइंट भी, ऑप्टिमल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस फर्म के पास टेक्नोलॉजी है दैट इज वेरी रिस्पेक्टेड। आप किसी फर्म को मेल डालो, इमीडिएटली जवाब आता है कि सर वी आर आउट, विल स्पीक टुमारो एट 10:10, और 10:10 पे आपको वहां से फोन आ जाए। आपको कितना अच्छा लगता है ना? आपको लगता है आप सिक्योर हाथों में हो, आपको लगता है आप जिससे काम करा रहे वो आदमी मौजूद है, वो आपके कंसर्न को समझ रहा है, सुन रहा हो, टाइम बाउंड एक समय में उसको ठीक कर रहा है। दूसरा, वो लोग जो डिसिप्लिन होते हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन के अंदर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इन डिसिप्लिन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कहते हैं ना, जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। तो ऐसी चीजें बोए डिसिप्लिन वे में, ताकि उसके फल भी मीठे और बढ़िया हो। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से पाए, बचपन से पढ़ते आ रहे। कितनी सही बात है। सर्विस डिलीवरी के डेट पे जिंदा रहे। और तीसरा, आपकी फर्म बड़ी है या छोटी है, एक पार्टनर को वो काम जरूर करना पड़ेगा जिससे फर्म का नाम बने, जिससे फर्म की इज्जत हो। मैं दोबारा कह रहा हूं, एक पार्टनर। आप देखोगे जैसे अतुल गुप्ता जी की फर्म का नाम ले अपरा में, तो अतुल गुप्ता जीएसटी के नाम से फर्म को जाना जाता है। अब अशोक बत्रा जी का नाम ले, अब जेके मित्तल का नाम ले, फर्म में कितने पार्टनर है? सिर्फ एक पार्टनर की वजह से जाना जाता है कि ये सर्विसेज का काम करती है। अब वेद जैन साहब का नाम ले, मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप इन्हें जानते हो। उसके अलावा बहुत सारे लोग, राजीव जैन है दरियागंज में, टैक्स
राकेश गुप्ता जी ने टैक्स। आप एक आदमी के नाम से आइडेंटिफाई करते हो कि फर्म इसमें स्पेशलाइज करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फर्म को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे आप घर तोड़ के नया बनाते हो ना, नींव तक तोड़ के नया बनाते हो, लेकिन आपको पूरा पता होता है कि मेरा स्ट्रक्चर ये है, अपनी प्रैक्टिस को तोड़े तो ना, नींव से तो मत शुरू करें, लेकिन ढांचे से शुरू कर दें। जो आपकी प्रैक्टिस उसको रहने दें और उसके साथ बड़ी शिद्दत, बड़ी मेहनत, बड़े जलाल, बड़े शबाब के साथ एक नया एरिया सेट करें। अगर आप मान लो जीएसटी कर रहे हैं और टैक्स कर रहे हैं तो आप इंटरनल ऑडिट में आए। इंटरनल ऑडिट एक सनराइज एरिया है। कम इन फोरेंसिक ऑडिट अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज के अंदर आए, अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। जीएसटी अगर आप करते हैं तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में आए, लेकिन सारे एरिया एक साथ मत शुरू करें, एक एक एरिया करके ऐड करें। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। मैं रिलायंस के बोर्ड में भी जा सकता हूँ, चरणजोत सिंह नंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैं वहां से सैलरी नहीं ले सकता, उस कंपनी से मैं कंपनसेशन ले सकता हूँ, सिटिंग फीस ले सकता हूँ, वो चाहे करोड़ों अरबों में हो। जो आदमी इन्फोसिस के बोर्ड पर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उन सबको मिलाकर 5 लोगों को 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलता है, जो करोड़ों अरबों रुपए में जाता है। वो सैलरी नहीं ले सकते, कंपनसेशन चाहे जितनी मर्जी हो। फर्स्ट, या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर सिंपलीसिटर बन सकते हो। आपकी और आपकी वाइफ की कंपनी है, आप उसमें डायरेक्टर सिंपलीसिटर बने, आपको कोई लेना देना नहीं, काम हो रहा है ना, आप चेक साइन कर रहे हो ना, डे टू डे वर्किंग में काम कर रहे हो। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंसल्टिंग कंपनी में ना तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, उसको सैलरी चाहिए, ना वो डायरेक्टर सिंपलीसिटर बन सकता है। उसने इन्वॉल्व होना, साइन करने, ओपिनियन देने, बात करने क्लाइंट से, कार्ड छपवाने हैं, तो क्या करेगा वो? इंस्टीट्यूट ने एक नया 2004-05 में, बड़ी पुरानी बात है लेकिन लोगों अभी तक क्लैरिटी नहीं, उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी सेटअप करा दी। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में क्या करते हैं जी? मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर मैं अगर एचआर का काम करता हूं तो मेरी कंपनी का नाम है, मेरा नाम है चरणजोत सिंह नंदा CSN HRD एंड ट्रेनिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं टेक्नोलॉजी का काम करता हूं, CSN टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मैं डिमांड एनालिसिस का काम करता हूं, CSN डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, CSN रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज, CSN बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज, CSN बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज, CSN सिस्टम एडवाइजरी सर्विसेज, CSN पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, CSN। मैं बहुत सारे ऐसे काम कर सकता हूं जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी के तहत करूंगा, और मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी बनाने के बाद, उसमें काम करने के बाद मेरा वजूद एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का रहेगा, और मैं उस कंपनी से सैलरी भी लूंगा, आर्टिकल्स को ट्रेन भी करूंगा अपने सीए फर्म में, और बैंक का काम भी करूंगा, CAG का काम भी करूंगा, इम्पेलमेंट में पूरा इन्वॉल्व रहूंगा। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए मेरी फर्म की से मेरी इनकम 10 लाख है और कंपनी से मेरी जो रेम्युनरेशन है वो 40 लाख है, कोई इशू नहीं। जब आप CAG का फॉर्म भरते नीचे लिखते हैं ना, एनी अदर इनकम विच इज परमिटेड बाय ICAI, ये परमिटेड इनकम है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। कैसे बनाते हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी? आप कंपनी का नाम इंस्टीट्यूट से लेते हैं, इंस्टीट्यूट आपको कंपनी का नाम देती है। क्या नाम है कंपनी का जी? वो आप रेगुलेशन 190 के अंदर बनाते हैं। रेगुलेशन 190 का मतलब आपको अपने नाम से कंपनी मिलेगी, फैंसी नाम नहीं मिलेगा। अगर मैंने कंसल्टिंग कंपनी बनानी है तो उसका नाम मुझे सफायर कंसल्टिंग कंपनी, डायमंड कंसल्टिंग कंपनी, सिस्टमैटिक कंसल्टिंग, यू कम एंड आई विल डू कंसल्टिंग, ऐसे नहीं मिलेंगी, मेरे नाम से मिलेगी। और मैं और राजेश जी अगर बनाते हैं तो नंदा अग्रवाल NA कंसल्टिंग कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड। हमने कोहली साहब को जोड़ लिया तो NAK कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में फर्म का नाम मिलता है वैसे नाम मिलता है। नाम लेने के बाद, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद, आप ROC में जाकर कंपनी रजिस्टर करते हो और उसमें काम करते हो, उस ऑब्जेक्ट का ही काम करते हो जो आपने लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। समय कम है इसलिए मैं आगे चलता हूं। उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो? देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां नाम की जरूरत पड़ती है जी। चरणजोत सिंह नंदा, मैं चाहे इंटरनेशनल टैक्स करूं, चाहे मैं टेक्नोलॉजी करूं, CS नंदा एंड कंपनी से आप क्या अंदाजा लगाओगे? लेकिन अगर मेरी फर्म का नाम, मेरी कंपनी का नाम है CSN टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, CSN HR कंपनसेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, CSN इंटरनेशनल टैक्सेशन सर्विसेज, तो नाम से पता चल गया ये काम हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि काउंसिल बड़ी रेजिलिएंट है। जो मेंबर की परेशानी अगर वो काउंसिल तक पहुंचे
तो इमीडिएटली रिजॉल्व करते हैं। जैसे अगर आप कंसल्टिंग करते हो लोन्स की, तो लोन्स में चलन है कि 50 करोड़ का लोन कराना और आपको 2% फीस मिलेगी, तो लोन्स में आप परसेंटेज में फीस ले सकते हैं। अगर आप रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, मान लो मैंने किसी कंपनी के अंदर CFO दिया, उसकी सैलरी 25 लाख रुपया है और मैं उसका 12% पर ईयर का मैं 12% CTC ले सकता हूं एज माई फीस, तो परसेंटेज बेस भी आप काम कर सकते हो। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपकी पब्लिक आई में आप रहते हो, आपका नाम बताता आप क्या काम करते हो। तो क्या क्या काम कर सकते हो आप? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन MS सिस्टम डेवलप भी कर सकते हो, डिजाइन भी कर सकते हो, इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। तो फर्म का नाम हो सकता है CSN मैनेजमेंट MIS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आप बजटरी और कंट्रोल सिस्टम कर सकते हो, सबसे बढ़िया काम है बजट बनाना और कंट्रोल एनवायरनमेंट को डिफाइन करना ताकि कोई लूप होल ना रहे। आप जो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल है उसकी भी कंपनी बना सकते हो, CSN कैपिटल यूटिलाइजेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। आप वर्किंग कैपिटल की भी कैसे वर्किंग करनी है कंपनीज में, आप उसमें भी इन्वॉल्व कर सकते हो ताकि एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल हो। आज MSME के अंदर 4 करोड़ 70 लाख रुपए हिंदुस्तानी MSME को मिले। अगर आप उसकी बाइफर्केशन देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो पैसे कहां से आए और कहां गए। अगर आप 4 करोड़ 70 लाख की बाइफर्केशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल तो उन्होंने 20 लाख करोड़ दिए, उसमें से 4 करोड़ 70 लाख रुपए लोन था। लोन 4 करोड़ 70 लाख की बाइफर्केशन क्या मैं आपको बताता हूं। 3 लाख रुपए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में दिए, जो कि पूरी तरह से मिल रही है। इसके अंदर 31 अक्टूबर की डेट है, या 3 लाख करोड़ जो जल्दी खत्म होगा ये स्कीम खत्म हो जाएगी। 20,000 करोड़ दिए स्ट्रेस्ड MSME के लिए, RBI ने गाइडलाइंस निकाल दी है, बैंक अभी इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तीसरा 50,000 करोड़ दिए फंड ऑफ फंड्स में, जिसमें इक्विटी इन्फ्यूजन करने हैं। 45,000 करोड़ दिए NBFC में। कौन सी NBFC में? लोअर रेटेड NBFC एंड माइक्रो फाइनेंस, इस पे अभी वर्किंग होनी है। उसके बाद 30,000 करोड़ रुपए दिए नॉर्मल NBFC में, जिसके अंदर के फंडिंग गवर्नमेंट से शुरू हो गई है, और 25,000 करोड़ दिए स्वामी फंड में, जिसके अंदर काम शुरू हो गया दिसंबर 19। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चरिंग का काम करते हो, वर्किंग कैपिटल की इफेक्टिवनेस का काम करते हो, तो ये आप MSMEs को बड़े अच्छे तरीके से एड कर सकते हो। और इंस्टीट्यूट का पूरा फोकस है, इस साल को आप MSME ईयर माने, काउंसिल के उसके ऊपर बहुत जबरदस्त फोकस है। आप डेलीगेशन और प्लानिंग ऑफ वर्क के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स पे भी काम कर सकते हो। आप एडवाइस दे सकते हो इंटरनेशनल टैक्सेशन मैटर्स पे, फॉरेन कोलैबोरेशन पे, जॉइंट वेंचर पे, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स के ऊपर। आप रिव्यू कर सकते हो ऑपरेशन कंट्रोल का, मतलब ऑपरेशन पर भी आप अपना व्यू दे सकते हो। आप फाइनेंशियल प्लानिंग और पॉलिसीज का काम कर सकते हो। आप कॉर्पोरेट लॉ के अंदर सेक्रेटरियल सर्विसेज और कंसल्टिंग कर सकते हो। इतने सारे काम हैं। आप अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, टेक ओवर एंड एक्सपेंशन कर सकते हो। मतलब आपकी कंपनी का नाम हो सकता है CSN M&A सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मेरी फर्म में क्या होता है नाम से पता ही किसी को नहीं। यहाँ M&A सर्विसेज का नाम सुनते ही आप टॉप कंपनीज के साथ खड़े हो जाते हो, और उसके बाद आप कितनी मेहनत करते हो इस बात को डिसाइड करता है कि आप कहां पर हो। आप फिजिबिलिटी स्टडी कर बना सकते हो न्यू प्रोजेक्ट्स के। आप काम कर सकते हो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, कंप्यूटर का, और उसमें अकाउंटिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज का पूरा ब्यौरा रख सकते हो। बहुत बड़ा एरिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी, देखो जी मैं आपको बता रहा था कि टेक्नोलॉजी कंपनी ने सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया। 19 इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया जिनका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड था। अब हम जैसे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो हमारे सर्वर के अंदर वो सॉफ्टवेयर है कि हमारे ऑफिस का कोई भी बंदा रात को 2 बजे भी सर्वर एक्सेस कर सकता है, उसमें काम कर सकता है, निकाल कुछ भी नहीं सकता, और जो करेगा उसी में सेव कर देगा। जो सेव करेगा उसकी मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, मुझे पता चल गया ये सर्वर में काम सेव हुआ। वर्क फ्रॉम होम अब एक हकीकत बन गई। और मास्क भी आप देखोगे जल्दी हटने वाले नहीं, 2-4 साल। ये अलग बात है कि लोग मास्क लगा के एक्सरसाइज करते हैं। अभी टाटा के एक बड़े सीनियर ऑफिशियल की डेथ होगी, बेचारा 5 किलोमीटर की सैर करके या मास्क लगा के बैठा गर्म पानी पर, वहीं कोलैप्स कर गया। जब उसको ऑक्सीमीटर चेक किया तो 0 थी, पीठ के ऊपर हरे निशान थे, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल 0 होगी।
तो हमें थोड़ा सा अपने आप को मैच करना है, लेकिन एक बात को समझना है कि आज के समय रिक्वायरमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी की, आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग बहुत बढ़िया काम है। सिलिकॉन वैली के समय में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपेयर टू अ पाकिस्तानी या पैलेस्टीनियन और अ बांग्लादेशी यूज्ड टू गेट 35 to 40% मोर सैलरी। आज भी आलम यह है कि आउटसोर्सिंग के अंदर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट पे बड़ा फेथ है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। और आपको मालूम है चाइना ने क्या किया वुहान में आने के बाद? जब वुहान के अंदर कोविड आया तो उसकी खबर फैलते ही जो कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज वुहान में काम करते थे, उनके शेयर बहुत बुरी तरह गिरे। और उन बहुत बुरी तरह गिरी प्राइसेस में चाइनीज गवर्नमेंट ने उन शेयरों को खरीद कर उन कंपनी को चाइनीज कंपनी कर दे जो अमेरिकन कंपनी थी। इसलिए अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और ये लॉ पास कर दिया फेडरेशन ने कि अब कभी भी कोई ओनिंग स्टेक नहीं ले पाएगा लिस्टेड कंपनी में। हिंदुस्तान में हाथों हाथ ये किया गया। आपको ध्यान होगा स्वराज पॉल का केस, जिसने स्कॉट्स को होस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश की थी। अब देखो दुनिया किस स्पेस पे बढ़ रही है और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको वहीं सपोर्ट कर पाएंगे। आप उसके अलावा आप बिजनेस सॉल्यूशंस, बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरियस एरियाज में। जब जीएसटी लॉ तफ्तीश हो रहा तो उसमें गवर्नमेंट को काफी, जीएसटी काउंसिल को काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बहुत कुछ वहां पे तफ्तीश किया, उनको बहुत कुछ एडवाइस किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप पर्सनल पॉलिसीज और प्रैक्टिस, आप एचआर का पूरा काम कर सकते हो सीए फर्म में या मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी बनाकर। आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू कैन डू रिक्रूटमेंट इन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंट्स, डाटा प्रोसेसिंग, पर्सनल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। मतलब लगभग हर एरिया में कर सकते हो। हर एरिया में आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आपको जरूरत इस समय सिर्फ एक छोटी सी चीज की है कि किस तरह आप घुसकर काम करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं इससे आगे चलता हूँ। ये मैंने आपको बहुत एरिया बता दिया। मैं एक 5-7 आपको एरिया और बताऊंगा। देखिए, जैसे ट्रेड रेमेडी मेजर्स का काम है, एंटी डंपिंग, एंटी सब्सिडी और सेफ गार्डिंग ड्यूटीज। ये आपको लगेगा सीएस का काम नहीं है। जब आप इसको ध्यान से देखो तो आपको ताज्जुब होगा कि सारा काम ही सीए करते हैं। इसमें लीडरशिप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की है जो जयपुर में बैठते हैं। वो काउंसिल के गवर्नमेंट नॉमिनी रहे हैं। उन्होंने इतनी जबरदस्त पे काम किया कि पूरे तमाम हिंदुस्तान में उनके ऑफिस हैं एंड दे आर डूइंग गुड वर्क। पर आप इन सारों में काम नहीं कर सकते। इसमें 1-2 एरिया ढूंढे और उनमें काम करें। देखो जी, अगर हम शिद्दत से काम करते हैं तो कहते हैं ना, मालिक के खजाने में रहमतों की कमी नहीं। मालिक के खजाने में रहमतों की कमी नहीं। झांकना खुद की झोली में है कि कहीं कोई सुराग तो नहीं, कहीं हम टेक्नोलॉजी को अपनाने से घबरा तो नहीं, कहीं हम अपनी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाने से घबरा तो नहीं रहे। राकेश गुप्ता जी की बात चल रही थी। मैं और राकेश गुप्ता जी का उम्र एक ही है। आई एम 68 born, ही 64 born, 3 जनवरी। राकेश जी के बारे में बहुत बढ़िया बता रहे थे। मैंने सुना था एक प्रोग्राम के अंदर, राजेश अग्रवाल साहब, उनके दिल में चाह जगी कि मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ। कहां से कहां पहुंच गए। जिंदगी में आप कभी भी कॉल लेकर कुछ भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड, कस्टम, वैल्यूएशन बहुत बढ़िया काम है। बहुत सारी मैं प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। लेकिन तीसरा काम, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। हिंदुस्तान के कोर्ट, हाई कोर्ट से इस बात के हामी है कि कोई भी कमर्शियल आर्बिट्रेशन बिना सीए के शिरकत के कंक्लूड नहीं हो सकती। तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे इसको? हमें कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए तैयारी करनी कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूट का एक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स होता है, आप उसको करें। अनाउंस भी होने वाला है इंस्टीट्यूट में। आप सबसे अच्छी बात है कि अब आप घर बैठ के कोर्स कर सकते हैं। मेरी कमेटी, आई एम द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड। आपको सुनकर खुशी होगी, इस पेंडेमिक में मैंने 4000 लोगों को वी हैव ट्रेन्ड देम इन कंकरेंट ऑडिट। 40 ऊपर कोर्स किए जी। एफएफडी का कोर्स कर सकते हैं आप, जो भी करना चाहो। हम अपील्स के प्रोसीजर पे कोर्स करा रहे हैं। हम WTO पे कितने कोर्स हो रहे हैं, आप देखो कितने कोर्स हो रहे हैं। आप कंसल्टेंसी दे सकती हो EOUs की, STPs की, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इन सब की आप कंसल्टिंग कर सकते हो। प्लीज इन नए एरिया में तवज्जो करें। हम लोग जीएसटी का काम करते हैं। मैं जीएसटी का फैकल्टी इंस्टीट्यूट के जब मैं जीएसटी पे लेक्चर देने जाता हूँ, लोग देखते थके थके। मैंने एक बार, मैं तो जाते प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज पे हूँ, मैंने उनको एक बात कही। मैं कहा, साहब पूरा जीएसटी पढ़कर याद रखना नामुमकिन है।
कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना किसी देश की पुलिस के लिए नामुमकिन है। तो जीएसटी भी याद रखना और उसको डेली अपडेट, क्योंकि हर चौथे दिन उसमें अपडेशन आया होता है। तो उससे बेटर है आप पीस मिल करके एक एरिया में फोकस करें। आप फोकस करें अनड्यू इनरिचमेंट, एंटी प्रॉफिटरिंग के ऊपर। वर्ल्ड वाइड इसमें बहुत काम है। इंटरनेशनल केस स्टडीज पढ़कर आप इसमें फोकस करें। आप एडवांस रूलिंग पे फोकस करें। एडवांस रूलिंग के अंदर कितना बढ़िया हमारे पास है कि 90 डेज में आपको एडवांस रूलिंग मिलेगी। नहीं तो कस्टम एंड इनकम टैक्स में कहां मिलती थी। आप फोकस करो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड्स में। आप फोकस करो 2A और लेजर डंप के आपस में रिकंसिलिएशन पे। आप क्रेडिट नोट्स पर फोकस करो। आप कंप्लायंसेस पे फोकस करो। आप ओपिनियंस पे फोकस करो। मैं आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको हटकर किटी में से कुछ सामान निकालना पड़ेगा जो आपको बड़ी क्लैरिटी देगी काम करने के ऊपर। आप ट्रिप्स का काम कर सकते हो, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपको सुनने में बड़े शब्द लगेंगे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। तो तकरीबन 8-9 महीने पहले मुझे इनवाइट किया नागपुर ब्रांच में। तो नागपुर ब्रांच में इशू मेरा सिर्फ यही था कि मैं उस दिन 2 जगह बोल रहा था। एक स्टूडेंट्स का प्रोग्राम था गुड़गांव में, उसके बाद शाम को किसी स्टडी सर्कल में बोल रहा था। उन्होंने कहा सब आना पड़ेगा, आप और नितिन गडकरी दोनों स्पीकर। मैं चला गया सुबह जी। मुझे एक बंदा नया सीए मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करके ले गया। मेरे लेक्चर के बाद जैसे समझो 10:30-11 खत्म और 2 बजे की फ्लाइट थी। तो उसने कहा सर होटल में क्या बैठ के करोगे, मेरा ऑफिस चलो। मैं सीए का ऑफिस चला गया। बहुत अच्छा रीजनेबल ऑफिस था। कहता ऊपर मैं आपको अपना आउटसोर्सिंग विंग दिखाता हूं। मैं ऊपर चला गया। बहुत खूबसूरत अच्छा बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब अगली बात सुनकर आप चौंकेंगे। वो 4 सीए हैं, 14-15 क्वालिफाइड। उन्होंने मिलकर एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई। अब याद करें आज से 2-3 साल पहले तक आप बैंक ब्रांचेस को कंसल्टिंग करते थे। आप बैंक ब्रांचेस को जीएसटी के बारे में कंसल्टिंग करते थे। आप बैंक ब्रांचेस के लिए टीडीएस का काम करते थे। अब नहीं करते ना। उन्होंने कंसल्टिंग करके सारे बैंक्स, मैक्सिमम बैंक्स का काम उनके पास है। और सिर्फ एक डायरेक्टर, एक सी और 5 आर्टिकल मिलकर तमाम इतने बड़े बड़े बैंकों का सारा जीएसटी और सारा टीडीएस संभाल के बैठे हैं। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। दिस इज द पावर ऑफ होनिंग योर टेक्निकल स्किल्स। अगर आप ट्रिप्स करते हैं या उसके नीचे अगर आप ट्रिम्स करते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, अपने हाथ में बहुत बड़ा काम है साहब। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ते हैं, उसमें बहुत बड़ा काम है। हर एरिया में काम है साहब। इनबाउंड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट्स में काम है। इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर अलग फर्म है। आप इसमें अलग फर्म बनाकर आप कंपनी बना के इंटरनेशनल टैक्सेशन में कर सकते हो। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, आपको सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि इंस्टीट्यूट का एक अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन है। उसी तरह तमाम हिंदुस्तान के अंदर जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जितनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उनको ज़हीन लोग चाहिए रिसर्च के लिए। और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा कैपेबल और टेक्निकली कंप्लायंट कोई बंदा नहीं है। इसमें आपको एक तो इस बात की बड़ी संतुष्टि मिलती है कि आपने कोई ढंग का काम किया, और फीस इसमें आपको पर आवर मिलती है। थोड़ा सा हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हमें थोड़े से वो काम करने पड़ेंगे जो आम लोग नहीं करते, क्योंकि इस समय जमावाड़ा हो गया है। जो नॉर्मल टैक्स का काम है, जीएसटी का काम है, स्टेट ऑडिट का काम है, टैक्स ऑडिट, वहां बहुत भीड़ है। जहां खाली जगह वहां पर जाना है आपने। हल्का सा जाने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी आपने काम कैसे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी कि आप नया काम करें। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नए काम में ही जीवन है। क्रॉस बॉर्डर मर्जर एक्विजिशन बहुत बढ़िया काम है। कंपटीशन लॉ, हमें लगता है कि इस कंपटीशन लॉ सिर्फ एडवोकेट्स का फॉरे है। हम कंपटीशन में क्या काम कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एडवाइजरी हम करते हैं, कंसल्टिंग, ड्राफ्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट हमारा फॉरे है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, असिस्टेंस, calculation for determining whether definitions of group interconnected undertakings, dominant undertaking are attracted। आप बिल्कुल आपस में चेक कर सकते हो कंपटीशन लॉ में जो इंटरकनेक्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं वो आपके हाथ में है नहीं है। अपीयर बिफोर द कमिश्नर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग और रिप्रेजेंटेटिव्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद। इतने काम है कंपटीशन लॉ में। मैंने आपको आउटसोर्सिंग बताया, केपीओ में इतना काम है। अब मेरी बात समझिए,
अब समय कम है मेरे पास, 4-5 मिनट में 5:50 तक खत्म करना चाहूंगा। मैं अब आपको लेके चलता हूँ कि किस ट्रिब्यूनल में आप काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पीपीटी है। आज मैं आपको न्यू जनरेशन का काम बताऊंगा जी। मुझे 1 मिनट दे सिर्फ। वेरियस ट्रिब्यूनल्स, आप ट्रिब्यूनल के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रिब्यूनल के प्रैक्टिस और प्रोसीजर रूल्स मालूम होने चाहिए। ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट WS आप बनाते हो, ड्राफ्टिंग ऑफ एफिडेविट करते हो, फाइलिंग ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो जी, आप प्रे फॉर रिलीफ करते हो और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइलिंग अपील। अब हमें लगता है हम खाली इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। आप सुनिए कितने ट्रिब्यूनल है। एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर बेनामी ट्रांजैक्शंस, आप उसमें जा सकते हो। बेनामी ट्रांजैक्शन में कितना काम होता है। PMLA प्रोविजंस, एपेलेट ट्रिब्यूनल आप जा सकते हो। NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन होती है, साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल, SAT, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल, एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज, एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हमें एक ट्रिब्यूनल मालूम थे, फिल्म सर्टिफिकेशन एपीलेट ट्रिब्यूनल, कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल, कंपटीशन लॉ के अंदर कोई अगर इशू बनता है तो आप अपील कर सकते हैं। कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल जब खत्म हो गए, खैर। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT, डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल आपको मालूम ही है। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एपीलेट बोर्ड, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल। अब देखिए कितने ट्रिब्यूनल्स में हम जा सकते हैं। अगर आप आउटसोर्सिंग करते हैं तो बिजनेस अकाउंटिंग ही कर सकते हैं। आप क्विक बुक्स में या कोई भी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर लेकर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन और रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। इसमें भी आपको पर आवर अच्छे पैसे मिलते हैं जी। आप क्वालिटी काम करते हो, आपकी कंपनसेशन भी बहुत क्वालिटी होती है। एसेट अकाउंटिंग मैनेजमेंट आप कर सकते हो। अकाउंटिंग मैनेजमेंट, एसेट को मैनेज करना, एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ट्स बनाना और मोर इंपॉर्टेंटली PV करके उसकी यूजफुल लाइफ को एग्जिबिट करना। फाइनेंशियल एनालिसिस, बैंक रिकंसिलिएशन, BRS अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेरोल मैनेजमेंट, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज की पेरोल मैनेजमेंट हिंदुस्तान करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, MS रिपोर्टिंग डेली बेसिस पे चाहिए, फाइनेंशियल रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन, ये हम ही करते हैं ना साहब। तो कितने सारे एरिया हैं जिसमें आप काम करते हो, कितने एरिया हैं। मैं आपको थोड़ी सी और बताता हूँ। रेलवेज अपने आप में एक नई अपॉर्चुनिटी लेके उभरा है जी, कन्वर्जन फ्रॉम सिंगल एंड टू डबल एंट्री के अलावा। आप रेलवेज को ध्यान से देखेंगे तो काफी टेंडर निकलते हैं। और टेंडरिंग में अच्छी बात बताता हूँ, लोग टेंडर से परेशान होते हैं, मुझे फोन करते हैं कि नंदा साहब कमाल है, बहुत कम प्राइस पे टेंडर चले जाते हैं। इंस्टीट्यूट ने इसका कॉग्निजेंस लिया। मैं 2012 के अंदर चेयरमैन था प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी का। एट दैट टाइम आल्सो हैड टेकन कॉग्निजेंस। अब PDC में हमने डिसाइड किया कि मान लीजिए एक टेंडर में किसी ने 2 लाख का टेंडर डाला है, किसी ने 180 का डाला और किसी ने 15,000 का डाल दिया है, तो 15,000 वाले से क्वेश्चनिंग कर देंगे कि 15,000 आप लाए कैसे। आपका कॉस्ट शीट बनेगी, कॉस्ट शीट में हम एडवाइस अभी इशू कर देंगे कि कॉस्ट शीट कैसे भरी जाए, कितने CA चाहिए, कितने आर्टिकल चाहिए, कितने पेड असिस्टेंट चाहिए, कितने दिन का काम है, कितनी कन्वेंस है, कितनी सैलरी कोशेंट है और आपका प्रॉफिट पोर्शन क्या है। तो अगर आप कम एब्सोल्युटली लो प्राइस पे बिड करते हो तो इट मे इंटेल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती हैं। तो रेलवेज के, ग्राम पंचायत के, ये बड़े इंटरेस्टिंग काम है जिसमें बहुत अच्छा लगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, आई हैपन टू बी द वाइस चेयरमैन ऑफ CSR कमेटी, और हम CSR कमेटी के अंदर अभी पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन कोर्स अभी चल रहा है और एक नया भी आने वाला है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा CSR के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सेक्शन 135, बहुत सारे एरियाज हैं इसके, अकाउंटिंग के, इसके टैक्सेशन के। तो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी और हमें वर्किंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें अपनी टेक्निकल स्किल्स को हॉन करना, सिस्टमैटिक वे में अपनी बातों को समझाना और बड़ी शिद्दत से एक बात को समझना। कहते हैं ना, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। सो दिस वाज माय ब्रीफ प्रेजेंटेशन। अगर कोई क्वेश्चन आंसर हम लेके विल ट्राई टू फिनिश अप द थैंक यू सर। 6 o'clock। सर थैंक यू वेरी मच। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं सर आपके लिए। जी बताइए ना सर।
क्वेश्चन आंसर चैट आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूं सर? क्वेश्चन आंसर पढ़ लें आप? मैं पढ़ पढ़ूं? ठीक है हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ जी। ये कह रहे हैं राकेश भार्गव साहब, कैन सीए डू द कंसल्टिंग एडवाइस टू द क्लाइंट बाय फॉर्मिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कैन इट बी डन टू क्लाइंट्स कवर अंडर सीए प्रैक्टिस? बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ आप वही एरिया करो जो टैक्सेशन को, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स, सॉरी जीएसटी और नॉर्मल ऑडिट नहीं, उसके अलावा आप कंसल्टिंग के लिए बनते हैं ना कंपनी, कोई इशू नहीं है, यू कैन डू भार्गव साहब, जो भी आप करना चाहो। सेकंड है सीए पूजा। देखिए पहले मैं भार्गव साहब की क्वेरी पे आ रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी ऐसा काम ना हो जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। 140 के अंदर हमने कई सर्विसेज ऑडिट को मना की कि ऑडिट वाला नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि आप ऑडिट सीए फर्म में कर रहे हो, कंसल्टिंग दूसरी फर्म में कर रहे हो जिसमें आप पार्टनर हो, जिसमें आप डायरेक्टर हो, तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज जो मर्जी करते रहो, कौन पूछता आपको? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। सीए पूजा जी का क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू ऐड एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट इन आवर फर्म, कैन वी ऐड हिम इफ ही इज नॉट ए सीए? इफ नॉट, if in LLP format can be done this? देखिए मैडम, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन डू पार्टनरशिप ओनली विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। फिर भी हमने मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अलाउ करी, और हमने अलाउ किया आज से काफी साल पहले कि सीए सारे प्रोफेशन आपस में एक मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बना सकते हैं, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, एमबीएस, लेकिन अभी तक इसके रूल्स पास नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे इस इशू को प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहे। तो जब तक सारी इंस्टीट्यूट आपस में मिल बैठ के एक ऐसा अरेंजमेंट नहीं बनाएंगे, तब तक हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप जोड़ सकते हो अगर वो सीए नहीं है, एज योर एम्प्लॉय, बट ही कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर पार्टनरशिप। एम्प्लॉय रख सकते हैं आप उसको, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी दे सकते हैं, लेकिन आप उसको एज ए पार्टनर नहीं ले सकते। अजय कुमार सदेवा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कैन ए प्रैक्टिसिंग सीए बी अ डायरेक्टर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड टेक पार्ट इन डे टू डे? मैंने आपको बताया कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो कुछ एरियाज हैं जिसमें वो काम कर सकता है, डेली वर्किंग नहीं कर सकता। अगर डायरेक्टर सिंपलिसिटर है तो भी डेली वर्किंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी जो इंस्टीट्यूट के शौर्य से बनती है, एंडोर्समेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर उसमें इन्वॉल्व है तो वो काम कर सकता है, वो डे टू डे वर्किंग कर सकता है अपने प्रैक्टिस के साथ। पर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स हैव टू एसेंशियली बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग। मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बाहर नहीं जा सकते। आई होप आई एम क्लियर सदेवा साहब, और आपकी कोई क्वेरी तो पूछ सकते हैं। नो क्वेरी सर, आपका स्पीच इतनी डेलिब्रेटेड होती है, एक्सप्लेनेबल होती है कि कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं सर। ये आपकी जरनबाजी है, ये आपकी जरनबाजी राजेश जी, नहीं तो कई बार इतनी ऊपर से निकल जाती है, आदमी कहता है समझ आए तो पूछो। नहीं सर, देखो, ये देखो कोई सर, ऐसा स्पीकर जो होते हैं ना, स्पीकर, उनका पता नहीं चलता। एक स्पीकर बड़ी शिद्दत से भाषण दे रहा था, धीरे धीरे लोग जाते रहे, एक बंदा बचा रहेगा, स्पीच खड़ी करके नीचे उसको गले लगा दिया, कहता भाई इस तमाम भीड़ में सिर्फ तू मुझे पहचान पाई, तू ही रुका रहा। कहता मैं अगला स्पीकर हूँ, बैठ कर मुझे सुन। इसलिए साहब स्पीकर की जो सोच है ना। सर, थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट स्पीच एंड आई एम ऑलवेज देयर सर, ऑलवेज एडिशन टू अस। एक बात मैं फिर ऐड करना चाहूंगा कि अतुल गुप्ता जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर ने सर आपका ही नाम सर मेरे को सजेस्ट किया आज के लिए, और जब मैंने नंदा जी को फोन किया, नंदा जी वाज वेरी बिजी एंड हिज टाइम वाज ऑलरेडी गिवन टू अनदर सीए स्टडी सर्कल और सम ब्रांच, लेकिन नंदा जी ने कहा राजेश यू गिव मी 1 मिनट, और अपनी वहां का टाइम कैंसिल करके he has given me a time. Sir, thank you for this also, and I request Rajiv Kohli ji sir once again, over to Rajiv Kohli ji for formal vote of thanks sir. kohli साहब सुन रहे हैं? थैंक यू। एक्सपीरियंस टू kohli साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। your voice is breaking sir, kohli sir. हमने अपनी दूसरे बोलते हैं, and basically she's this kind of
कोहली साहब, डिलीवरी की 1 सेकंड सर, म्यूट तो नहीं किया? हाँ सर, अब आप अगेन बोलिए, अगेन बोलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नाउ स्पीक अगेन सर। कोहली सर, आप अनम्यूट करो सर अपने आप को। कोहली साहब। हाँ, अनम्यूट किया उन्होंने, बोलिए बोलिए। हाँ, कर रहा हूँ। कैन यू हियर मी प्लीज? यस सर, यस सर, हेलो। योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर। नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके। ओके सर, नंदा जी थैंक यू। सर फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट अपनी रूह से बोलते हैं। बेसिकली आपने वी हैव टू डिफाइन आवर निश मार्केट से कुएं के मेंढक वाली हमें जो अपनी साइकी है ना चेंज करनी पड़ेगी। कंपनी आ गया, वी हैव टू पुट ऑन एडिशनल थिंग्स। 1 और 1 11 होते हैं। वी हैव टू सेट अप एंड वी हैव टू लुक एट द न्यू ऑप्शंस, whether technology based management consultancy, service tax, trade or international commercial arbitration are very nice thing. Providing service for SEZs, UOU, IPR related trips, competition lottery, and so many tribunals are CA. We can appear in those tribunals. They are very very defined. This आदमी निश अपनी create करके has to work on that, sir. Thank you for making us aware of all these opportunities. These are things for the future, because जो routine की practice वो change होती जाएगी because of technology has a both. It is a distractor also for multi-repetitive skills. So we have to provide value addition skills to every of our clients, sir. Thank you very much from the core of our heart, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वंस थैंक अगेन यू, सर। थैंक यू गर्ग साहब, थैंक यू तमीजा साहब, थैंक यू कोहली साहब, एंड Thank थैंक यू you, ऑल sir. द पार्टिसिपेंट्स। इट्स अ Thank ग्रेट you. ऑनर। राजेश जी को हक है, जब बोलेंगे हम आएंगे सर, कोई इशू नहीं है। So nice, sir. राजेश जी, मैं Sir. खत्म एक शेर के साथ करूंगा। वो शेर है जी कि जब भी जी चाहे बुला लेना मुझे मेहरबान, जब भी जी चाहे बुला लेना मुझे मेहरबान, मैं गया वक्त नहीं जो लौट के ना आऊंगा। Whenever you call, I am there. Thank you so सर। much. सर ये आपका घर है, जब आप इच्छा हो तब आप आ सकते हो। मुझे मालूम है सर। सर थैंक यू सर, थैंक थैंक यू।